BAC, default tax regime. We will solve one question to understand this application of tax rates. Very small question. There is illustration 3. Mr. X has total income of 16 lakh in a previous year 2023-24, comprising of income from house property and interest on fixed deposit. So house property and interest on fixed deposit looks like a normal income. It doesn't look like a special income to me. So it will be taxable at normal rates of tax. Compute his tax liability for AY 24-25 under default tax regime 115 BAC. This is how the questions will be reflected in your examination. I'm going to do it on Excel so that you people should also follow. Please take your notebook and write down I3 illustration 3. Assessee Mr. X. तो मिस्टर एक्स नाम देख के क्या पता चलता है अपने को? what he is, what is the legal status? Individual. So that is important because 115 BAC is applicable to individual. Legal status individual. Then residential status. OR. Assume करने का because majority of Indians are OR only. AY 24-25, PY 23-24, and PAN. Particulars. Amount in rupees, amount in rupees. Okay, we'll start with the total income. मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, but just presentation part. 16 lakh. Tax computation. Up to 3 lakh, right? अच्छा, मैंने ऊपर heading ही नहीं दिया. Let me give the heading first. Computation of tax liability under section 115 BAC dash default regime. Up to 3 lakh nil. 3 lakh to 6 lakh at the rate of 5%. तो क्या होता है 3 लाख का कितना लेना होता है? सिंपली 5%. सो दैट इज वेरी इजी. 15,000. 6 लाख टू 9 लाख ना? कर रहे हो ना आप लोग भी मेरे साथ? 6 lakh to 9 lakh at the rate of 10%. So that will be 30,000 rupees. 9 lakh to 12 lakh at the rate of 15%. That will be 45,000. 12 lakh to 15 lakh at the rate of 20%. That would be 60,000. And above
15 lakh at the rate of 30%. So 16 lakh है total, तो balance is only 1 lakh. 1 lakh का 30% is 30,000. If you want buy 16 lakh का 16 lakh में से 15 lakh का calculation you have already done. So into 30%. So that will be this much. All right. This is income tax. Now what else we have to add? Add health and education cess. %4 of income tax amount. Why we did not put surcharge here? 50 lakh, क्योंकि surcharge 50 lakh के बाद ही start होता है, तो therefore tax liability. This plus this. Because it is already rounded off, we don't have to do rounding off. Easy. 1,87,200. So that's how we do the tax calculation of default regime. तो default regime में कोई तो problem है ही नहीं, ठीक है. अब normal tax regime में हमें बात करनी है. Income finance, academics, CA final ना. Okay. So what we need to learn now here, that if you are having a normal income, then tax rates are given under Annual Finance Act. And if you are having special income, then tax rates are given in Income Tax Act. So this is very much clear. 115 BSC is not from Finance Act, it is from Income Tax Act. Whenever we refer any section, that is special income. So sir, how do we remember what is normal income? Beta, whatever is not special income is a normal income, right? और special income जो भी होगा उसकी हमें list बनानी पड़ेगी. We have to create a list. AC, you keep this remote with you, no? Chalu. So sometime like we will learn all the special income, but definitely you will never understand all the special income at one go. But because we will be referring the special income again and again, let me give an attempt to teach you special income ka brief at least. ऊपर से तो आपको पता होना चाहिए, at least grossly you should know. And then when we enter into the law, when we do the capital gain ka chapter and when we do the IFOS, you will understand all the special income. But as of now, I'm going to give an attempt to teach you basic rates of special income. Not all, जो most common होते हैं. At least we will have some discussion on that, so that it will be easy for me to refer, okay, this is the special income. Now rest, all the incomes are normal income, because we don't have list of normal income in the law. We have list of special income in the law. Whatever is not a special income is a normal income. तो special income की बात करते हैं. Let us start with one of the special income, that is capital gain वाला. Okay. Okay. So this is again historical event that has happened in India. What is to happen?
You understood that word DTAA, right? Double Taxation Avoidance Agreement. So due to that, we had created one mess in income tax law. कुछ हो गया था गड़बड़. तो what has happened? अब मुझे पहले आप बताइए, this is Indian share market, okay? If few Indians are investing in Indian share market and they are getting gain out of it, short-term capital gain, long-term capital gain, is it taxable or exempt? Taxable. Very common. Like बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से पैसे कमा रहे तो टैक्सेबल होता है. So if somebody from USA, okay, somebody from USA invest in India, taxable or not taxable? Taxable, क्योंकि इंडियन को टैक्स किया है. These people are non-resident, but non-resident earning income in India, तो फॉरेनर का इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है. Okay. Similarly, Canadian people invest in India, again taxable. Similarly, Dubai people investing in India, taxable. Similarly, any other country for that matter investing in India, taxable. But there was one country called Mauritius, okay, with whom we had DTAA. The DTAA said if Mauritius people invest in India, due to that treaty between two nations, it was not taxable. Okay, it was not taxable. Mauritius से अगर आप इंडिया में आते हो तो इंडिया में टैक्स नहीं लगता. ऐसा क्यों किया होगा? मे बी ड्यू टू द फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, राइट? मॉरिशस के कितने लोग, वैसे भी मॉरिशस का पॉपुलेशन इज वेरी लेस. मॉरिशस इज आइलैंड, इज नॉट इवन अ कंट्री. ओके, तो उस कंट्री के साथ या उस आइलैंड के साथ हमारा जो ट्रीटी एग्रीमेंट था, वी अज्यूम दैट वेरी फ्यू पीपल विल इन्वेस्ट इन इंडिया. लेकिन फिर इस ट्रीटी को अब्यूज किया गया, मिसयूज किया गया. हाउ? देखो ना, आपके सामने ही टैक्स प्लानिंग दिख रहा है आपको. आप अगर किसी भी देश से इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो टैक्सेबल. तो व्हाट दिस फॉरेन पीपल मस्ट हैव स्टार्टेड डूइंग? दे मस्ट हैव स्टार्टेड ओपनिंग द ऑफिसेस इन मॉरिशस. तो सारे लोग मॉरिशस में सडनली ऑफिस लेना चालू कर दी. नॉट वेरी बिग ऑफिस, वेरी स्मॉल ऑफिस, अपने स्टूडियो जितना. ओके, दिस इज इनफ. एंड सम पीपल डिड नॉट इवन हैड ऑफिस. ठीक है ना, कुछ लोगों का तो ऑफिस भी नहीं था, खाली पोस्टल एड्रेस होता है वहां पे. पोस्टल एड्रेस, दे सेल पोस्टल एड्रेस. ठीक है ना, मतलब खाली लेटर जाएगा तो उस एड्रेस पे जाएगा. तो एक ही बिल्डिंग में, एक ही ऑफिस में कम से कम 25 कंपनी रजिस्टर्ड है एक ही एड्रेस पे. दैट्स व्हाट दे सेल एज अ पोस्टल एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया? मॉरिशस में कंपनी खोलना चालू किया. आई होप यू आर गेटिंग दिस. क्यों मॉरिशस में क्यों कंपनी खोलनी चालू की? इधर होल्डिंग कंपनीज होगी और इधर सब्सिडरी कंपनीज होंगी. ऐसा कुछ करना चालू किया. और ये मॉरिशियस के रूट से कहां पे इन्वेस्ट करना चालू हो गए? इंडिया में. तो ये जो सारे फॉरेन के लोग थे, ये सारा का सारा जो इंडिया से गेन कमाते थे, वो क्या हो गया? नॉट टैक्सेबल. ओरिजिनली ये इंटेंट किसके लिए था? मॉरिशियस के लिए. और ओरिजिनली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या था कि ग्लोब में का कोई भी कंट्री अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट विल टेक टैक्स ऑन इट, बिकॉज इंडिया के पास उतना राइट है. बट पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग द ट्रीटी. मॉरिशियस, इंडो मॉरिशियस ट्रीटी जो था, क्योंकि इंडो मॉरिशस ट्रीटी ने क्या किया? एग्जाम करके रखा था, तो सारे लोग फॉरेन में गए. और हद तो तब हो गई जब इंडिया के बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े एक्टर, मूवी वगैरह जो फिल्म स्टार है, बहुत बड़े बड़े, बहुत रिस्पेक्टेड, रिकॉर्डेड लाइन है तो वी डोंट वांट टू टेक देयर नेम, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं. इवन दे वेंट टू मॉरिशस. आप समझ रहे हो क्या? दे टुक द ऑफिस इन मॉरिशस, दे ट्रांसफर्ड देयर इंडियन फंड टू मॉरिशस एंड फ्रॉम मॉरिशस दे इन्वेस्टेड इन इंडिया. It was too much. Why? Because Indian people investing in Indian market taxable. Mauritius people or through Mauritius people investing in India is exempt. तो लोगों ने ट्रीटी को मिसयूज किया. तो होता क्या था, जब भी आप नए फाइनेंस मिनिस्टर बनते थे हमारे देश में, मान लीजिए कोई भी नए फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मॉरिशियस का टूर जरूर करते थे बनने के बाद, इमीडिएटली कुछ दिनों में ही. एंड दे यूज्ड टू रिक्वेस्ट मॉरिशियस गवर्नमेंट कि बाबा प्लीज ये ट्रीटी को कैंसिल करो, या इस ट्रीटी को अमेंड करो, इस ट्रीटी को मिसयूज किया जा रहा है. अब मुझे बताओ, आप मॉरिशियस की गवर्नमेंट हो, आप इस ट्रीटी को अगर अमेंड कर दोगे या कैंसिल कर दोगे, आपके यहाँ पे फॉरेन करेंसी का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आ रहा है वो आएगा क्या? नहीं. मतलब आपकी इकोनॉमी का प्रॉस्पेरिटी डिपेंड है इस ट्रीटी के ऊपर. तो मॉरिशियस की गवर्नमेंट क्यों ट्रीटी कैंसिल करेगी? मॉरिशियस में ऐसा क्या है इन्वेस्ट करने जैसा? नथिंग. मॉरिशियस का शेयर मार्केट इतना फ्लरिश नहीं हो रहा है जितना इंडिया का हो रहा है. देयर इज नो ग्रोथ बिकॉज स्मॉल नेशन में स्मॉल कंपनीज होंगी. वी विल नॉट हैव द ह्यूज कॉर्पोरेट लाइक वी हैव इन इंडिया. तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी. तो लोगों को इन्वेस्ट तो इंडिया में ही करना था, मॉरिशियस में इन्वेस्ट नहीं करना था. बट दे वर इन्वेस्टिंग थ्रू मॉरिशियस
टू टेक एडवांटेज ऑफ द टैक्स ट्रीटी, कि टैक्स का उनको बर्डन ना आए। और इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टैंड पॉइंट राइट था। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड पॉइंट क्यों राइट है? अमेंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा यार टैक्स ही नहीं हो रहा है, मतलब पीपल आर अर्निंग मनी फ्रॉम इंडिया, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट पेइंग टैक्स इन इंडिया, हाउ गवर्नमेंट विल प्रोग्रेस? तो ये आप पहले करके चल रहा था, कोई लोग अमेंड ट्रीटी अमेंड कर ही नहीं रहे थे। देन वी गॉट वन क्रेजी फाइनेंस मिनिस्टर, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, okay, very crazy finance minister. He has taken very harsh decision for India, very harsh, and definitely in Indian eyes he is most respected, but in foreign eyes it is most disrespected personality, because whenever you take harsh decision in favor of India, that means you are taking harsh decision against the globe. So Mr. P. Chidambaram I am talking about, he became the finance minister, he understood the game. He became finance minister first time in 1997. तब से वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये मार्केट में चालू क्या है। He took his time. फिर वो गवर्नमेंट आई गई, बीजेपी की गवर्नमेंट, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। So lot of things happen in India in 1997 to 2004. बहुत सारा झमेला हुआ। 2004 again he became finance minister. Now when he became finance minister for the first time, he understood कि हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा रेवेन्यू लीकेज हो रहा है। We are not getting the tax on share market. सोचो, फॉरेन के लोग इतना कमा रहे, आज भी आप अगर इंडियन मार्केट का अगर एनालिसिस करोगे, more than 90%, according to my rough estimate, I'm not expert of market, but according to my rough estimate, more than 90% people who are playing in the market are not Indians, they are foreign institutions. We call them FII, foreign institutional investors. इसका ये मतलब है कि इंडियंस के हाथ में मार्केट नहीं है, मार्केट हमारा इंडियन मार्केट तो फॉरेनर्स के हाथ में है, because they are putting huge money in Indian market. And why foreigners are putting Indian money in Indian market? Because we are a progressing nation, we are a developing nation. तो इतना पैसा वो वेल्थ कमा रहे थे, लेकिन they were not paying tax. It was very sad for India. 2004 he understood why it is happening, so he brought one section, historical है अभी ये सब कुछ, ये हो गया है, अभी ये है नहीं, तो he brought one section in income tax, section 1038. He brought section 1038. 10 बोले तो exemption. He just simply said, why people are going and investing in Mauritius and Mauritius to India? Why? What is the reason? एक रीजन बताओ ना, because they love Mauritius? नहीं, एक रीजन बताओ ना, why people are going to Mauritius and they are investing in India through Mauritius? टैक्स नहीं भरना है ना, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर मार्केट का जो है वो एग्जम्प्ट कर देता हूं, फुल्ली एग्जम्प्ट। 2004 में क्या लाया उन्होंने अमेंडमेंट? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वैसे भी आपको टैक्स नहीं भरना है ना, हमने टैक्सेबल रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन वैसे भी मेजोरिटी जो लोग है वो टैक्स भर ही नहीं रहे ना, तो उससे अच्छा तो मैं क्या कर देता हूं, एग्जम्प्ट ही कर देता हूं ना। एग्जम्प्ट करोगे तो कम से कम आपको इतना गोल घूम के आना नहीं पड़ेगा ना, आपके देश से मॉरिशस में जाओ, मॉरिशस से इंडिया में आओ, फॉरेन करेंसी ट्रांजिशन, फेमा के लॉ, इतना सब क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली इंडिया में पैसे लगाओ, एग्जम्प्ट। नाउ पी चिदम्बरम एज अ पर्सनालिटी, जैसे आप लोग मुझे घूर रहे हो, पूरा वर्ल्ड उसको घूर रहा था कि ऐसे कैसे नॉन टैक्सेबल कर सकता है, इम्पॉसिबल है। मिस्टर पी चिदम्बरम इज नॉट नोन फॉर exemptions, he is known for taxation. उसकी पर्सनालिटी नहीं है कि एग्जम्पशन दे दे आपको, जाओ जाओ मजे कर लो, ना 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 ना, इज नॉट लाइक दैट। मनमोहन सिंह जी वाज लाइक दैट कि देश डेवलप होना चाहिए, भले एग्जम्पशन ले लो, उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। लेकिन पी चिदम्बरम वाज कंप्लीटली अपोज टू एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, नहीं देना है, और फिर भी उन्होंने ऐसा सेक्शन लाया। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा वर्ल्ड वाज अंडर शॉक, इंडियंस वर आल्सो अंडर शॉक। क्या शेयर मार्केट एग्जाम आपको भी डाइजेस्ट हो रहा है क्या? बताओ मुझे। शेयर मार्केट में जो लोग है वो रिच है, इनकम टैक्स कौन भरना चाहिए इंडिया का? रिच पॉपुलेशन शुड पे टैक्स, रिच पॉपुलेशन, एंड पीपल हु आर अर्निंग इन मार्केट दे आर ऑब्वियसली रिच, एंड यू आर सेइंग नो नो रिच पीपल शुड नॉट पे टैक्स। तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आप लोगों को भी? तो मुझे नहीं पता उस गेम को क्या बोलते हैं मराठी में, लेकिन वो एक गेम है, पता है आपको? ये हाथ ऐसे आगे रखने का, फिर अपन ऐसे सामने वाला मारेगा, अपने को झुकाना होता है,
वो तब तक मारते रहेगा जब तक वो लगते रहेगा, जब वो चुक जाएगा तब आप जीत जाते हो, फिर से गेम चालू होता है। और उसमें फिर आपको पता है वो उसको सामने वाले को मारना है अपने को, तो हम क्या करते हैं, एक्शन इस हाथ से करते हैं मारने का, लेकिन मारते ही हाथ से। आप समझ रहे हो ना? तो आई गेस दिस वाज द फेवरेट गेम ऑफ पी चिदम्बरम। एग्जम्पशन 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 टैक्स, मतलब दिखा रहे एग्जम्पशन है लेकिन लेंगे कुछ ना कुछ टैक्स। आप समझो, ही इज नॉट नोन फॉर एग्जम्पशन, इज नोन फॉर टैक्स। क्या किया देखो उन्होंने, हाउ मैजिकल ही वाज। मतलब अभी ऑब्वियसली इज द फाइनेंस मिनिस्टर, जिसने भी ये सोचा होगा दैट विल बी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ऑब्वियसली ही हैड अ करेज टू से दिस इन पार्लियामेंट, दैट्स द रीजन वी आर रिस्पेक्टिंग हिम। तो 1038 में आने के बाद हुआ क्या, व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर, देखो गेम क्या है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट कर देता हूं आपका, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमने सेबी वगैरह बनाया हुआ है, तो वी आर द रेगुलेटर्स ऑफ इंडिया, इंडियन मार्केट। सो यू हैव टू पे सम ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या पे करना पड़ेगा आपको? अब ट्रांजैक्शन टैक्स ज्यादा नहीं होता, मैं आपको गूगल पे दिखा भी देता हूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते हो तो यू शुड नो, जस्ट शो इट। देखो ट्रांजैक्शन रेट कितने होते हैं। There is no STT limit on equity shares and equity on mutual fund. However, 0.1 STT applies on total value of delivery based on sale on purchase of equity shares. ऐसे कुछ कुछ है, ज्यादा नहीं, मुझे रेट बताना है आपको खाली, ठीक है ना। देखो रेट कितना कम होता है, 0.025, मतलब 0.0 भी, मतलब 0.1 भी नहीं, किधर किधर क्या है, 0.025 ऑन द सेल साइड एंड 0.1 ऑन बोथ। दिख रहा है आपको यहाँ पे 0.1 ऑन बोथ बाय एंड सेल साइड, 0.125 ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का अलग है, इक्विटी का अलग है, एफएनओ का अलग होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी वो 1% से तो ज्यादा नहीं दिख रहा है ना आपको, हायर साइड पे 0.1%। तो मुझे बताओ, मैंने आपको बोल दिया इतना आपको एसटीटी भरना पड़ेगा, आर यू रेडी टू पे एसटीटी? आप क्या बोलोगे? अरे नेग्लिजिबल है ना, 0.025 क्या होता है। ओके 2004 से ये चालू हुआ है एसटीटी। देखो क्या उन्होंने क्या बोला, ये आपको एग्जम्पशन मिलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, क्या यू शुड हैव पेड व्हाट, एसटीटी पे करना पड़ेगा ना। एसटीटी पे करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम, और एसटीटी पे करने के लिए यू आर सपोज टू ट्रेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आरएसएम जिसको बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो रिकॉग्नाइज है, क्योंकि तभी अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक भी थे, स्टॉक एक्सचेंज भी थे, मैन्युअली जो चलते थे, गली गली में चलते थे स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट ने उसको बंद करना है। ही इज द पर्सन हु ब्रॉट डीमैट कॉन्सेप्ट, डीमैटेरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। मिस्टर पी चिदम्बरम इज द पर्सन हु बॉट डीमैट। डीमैट आप जिसको बोलते हैं ना, डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब पेपर फॉर्म में शेयर ट्रेड नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होंगे, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही होंगे। तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स वर ब्रॉट बाय हिम। तो डीमैट वगैरह उन्होंने लाया, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लाया, उन्होंने बोला आपको आरएसी पे ट्रेड करना पड़ेगा और एसटीटी भरना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो उन्होंने किया क्या, बिफोर और आफ्टर का गेम समझो क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये बिफोर एंड आफ्टर का गेम है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल था, एम आई राइट, टैक्सेबल था। अरे 20% वगैरह पकड़ लो, उसे लेना देना नहीं रेट का। अभी क्या किया उन्होंने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फुल्ली एग्जाम, 1038 लाया ना, तो फुल्ली एग्जाम किया। अभी ये सब डिलीट हो चुका है, मैं आपको खाली हिस्ट्री बता रहा हूं। अभी टैक्सेबल किया, पहले एक टैक्सेबल था, अभी एग्जाम किया। पहले एसटीडी करके कुछ था ही नहीं, अब एसटीटी करके कुछ आ गया, रेट वेरी लो, लेकिन एसटीटी करके कुछ आ गया, एसटीटी भरोगे तो ही 1038 मिलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब गेम देखो, मुझे बताओ शेयर मार्केट में अगर आज 100 लोग इंटर किए, 100, तो गेन कितने लोगों को होता है डे एंड पे, परसेंटेज में बताओ। लाइक मेजोरिटी पीपल हैव गेन और मेजोरिटी पीपल हैव लॉस, लॉस। चलो मान लेते हैं 5% लोगों को गेन होता है, तो खाली 5 लोग ही पहले टैक्स भरने के लिए लायबल थे ना। तुम समझ रहे हो? 95% लोग तो क्या लेके जा रहे थे, लॉस, और लॉस के ऊपर तो टैक्स लगना है नहीं, खाली 5 लोग ही तो गेन के ऊपर टैक्स भरने वाले थे। अब मुझे बताओ, अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितने लोग भरेंगे,
100 100% मतलब आपको गेन हो या लॉस हो, आपको तो क्या भरना है, एसटीटी भरना ही भरना है। आप समझ रहे हो क्या, गेम समझो जरा अभी। गेन निकलता कैसे है, गेन कैसे निकलता है, व्हाट इज द गेन का फॉर्मूला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, सेलिंग प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट कंसिडरेशन, ये सब पढ़ेंगे हम कैपिटल गेन चैप्टर में, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना, और इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और शेयर में इंप्रूवमेंट होता नहीं है, तब जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था। यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या, पहले ये वाला फिगर टैक्सेबल था, मतलब अगर शेयर मार्केट में कोई 1000 रुपया लेके एंटर करता है आज 1000 रुपीज लेके, उसका गेन 20 रुपया होता है, 20 रुपीज 30 रुपीज। आप समझ रहे हो क्या, पर्सनल टाइम में 2% 3% वो गेन कमाता है अपनी कैपिटल वैल्यू का रोज। दैट्स व्हाई इट इज ह्यूज ना, रोज अगर टू, आप समझो बैंक आपको साल भर का 8% देता है, पर एनम 8%, यहाँ पे अगर रोज का 1% भी अगर आप कमाओगे तो महीने का ही 30% हो गया, एक साल का 360% हो गया ऑन एन एवरेज। आप समझ रहे हो ना, तो ये 300% वगैरह कमाने वाला धंधा है ये। तो 1% 2% लोग ही गेन कमाते हैं। पहले जो टैक्स का रेट था, क्या टैक्स करता था पहले, गेन ये वाला। अभी क्या टैक्स हो रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ये वाला 1000 रुपया। आप समझ रहे हो क्या, रेट कम कर दिया साहब ने, लेकिन जो अमाउंट थी, अरे वो बहुत बड़ी हो गई, छोटी मोटी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी हो गई। क्योंकि ये देखो ना, 20 रुपए के पर पहले टैक्स लगता था, अभी कितने पे लग रहा है, 1000 रुपीज पे। अभी करोड़ में बात करो, पहले 20 करोड़ टैक्सेबल होता था, अभी 1000 करोड़ टैक्स हो रहा है। ये छोटा नंबर नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, पहले क्या होता था, गेन, नेट गेन टैक्स होता था, अभी क्या टैक्स हो रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्स हो रही है। मुझे बताओ गेन किसको होता है, सेलर को कि बायर को, सेलर को गेन होता है ना, गेन तो सेलर को ही होगा। ट्रांजैक्शन कौन करता है लेकिन शेयर मार्केट में, सेलर भी ट्रांजैक्शन करता है। और आप समझ रहे हो क्या, डबल कर दिया साहब ने, डबल। सेलर सेल वैल्यू पे एसटीटी भरता है और बायर बाय वैल्यू पे एसटीटी भरता है। सोचो आप, ट्रांजैक्शन 1000 रुपए का ही हुआ है, लेकिन एसटीटी 2000 रुपए पे आएगा। नहीं समझ रहा है, अरे एक ने सेल किया दूसरे ने बाय किया, सेलर भी क्या भरेगा एसटीटी और बायर भी क्या भरेगा, डबल कर दिया ना सर ने, डबल, 1000 का डबल कर दिया। समझ रहे क्या गेम, समझ रहे आपको, एग्जम्प्ट है कैपिटल गेन, एसटीटी लगा दिया। लेकिन पहले मतलब ये दो लोग टैक्स भरते थे, पहले खाली यहाँ पे खाली सेलर भरता था, अभी सेलर भी भरेगा और डबल कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। अभी देखो बिफोर आफ्टर में और एक बहुत बड़ा गेम, शेयर मार्केट में मेजॉरिटी लोग लॉस करते थे, क्या करते थे, लॉस। तो लॉस तभी सेट ऑफ मिलता था, अरे लॉस होगा तो क्या होगा, सेट ऑफ मिलेगा। आपने 10 ट्रांजेक्शन किए, 10 में क्या, 8 ट्रांजेक्शन में आपने लॉस किया, 2 ट्रांजेक्शन में गेन किया, तो गेन करने के बाद भी आप टैक्स नहीं भरते थे, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा लॉस आपने जमा करके रखा रहता है, लॉस का सेट ऑफ मिलता था। अब हो क्या गया, क्योंकि अब गेन ही एग्जेम्प्ट हो गया है, क्या हो गया था, गेन एग्जेम्प्टिव, मतलब गेन होगा तो टैक्स हो लगेगा ही नहीं आपको। तो ये जो लॉस था, लॉस, अभी भी शेयर मार्केट में लोग लॉस करते थे ना, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा अभी आपको, नो सेट ऑफ, किसी भी चीज के सामने इसका क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट लॉस का, एग्रीकल्चर में लॉस हुआ तो सेट ऑफ मिलेगा क्या बिजनेस के सामने, क्यों, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स ही नहीं है, तो सेट ऑफ कैसे देंगे। तो इतना तो कॉमन सेंस है ना आपको, कि सोर्स अगर एग्जाम्प्ट होगा, सोर्स अगर टैक्सेबल होगा तो उसका सेट ऑफ भी मिलेगा लॉस का, सोर्स ही अगर एग्जाम्प्ट होगा तो उसके लॉस का सेट ऑफ भी। ये आपको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। तो पहले जो सेट ऑफ मिलता था ना, वो भी नहीं मिला अभी, घर बीर बेच के जो गेन होता था वो पहले सेट ऑफ करते थे लोग शेयर मार्केट के सामने, अभी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट कर दिया उन्होंने। चिदम्बरम सर है वो, ब्रिलियंट ब्रेन। अब बोलो आप एक चीज, अभी भी आप बोल सकते हो, मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो, सर वो मॉरिशियस का क्या, मॉरिशियस के लोग तो अभी भी इंडिया में, अब पहले तो लोगों को मॉरिशियस जाने की कोई जरूरत नहीं है, इंडियन मार्केट डायरेक्टली एग्जेम्प्ट है, यहां तक क्लियर है। सर एसटीटी, इंडियन मॉरिशियस ट्रीटी में इनकम टैक्स ओवरराइड कर रहा था,
मतलब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, एसटीटी तो एक्ट ही अलग है। तो मॉरिशियस से भी अगर आप इंडिया में आओगे तभी भी आपको एसटीटी तो लगेगा ही लगेगा। आप समझ रहे हो ना, अभी कोई पर्पज ही नहीं है मॉरिशियस जाने का, आपका कोई बेनिफिट ही नहीं है। इनकम टैक्स को ट्रीटी ओवरराइड करता था, एसटीटी को ओवरराइड नहीं करता। अभी हम लोग शाने लोग हैं, हमको पता है किधर ओवरराइड करना है किधर नहीं करना है। कितना भारी काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अभी इसके आगे जाता हूं। आप मुझे स्पीकर लाके दोगे क्या? मैं क्या बताऊं, मैं छोटा इंसान हूं साहब, ठीक है ना। जिन्होंने ये सेक्शन लाया आप उनसे ही सुनिए। अब हुआ क्या, अरुण जेटली सर आए 2014 में, आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और अरुण जेटली सर ने एक डेटा दिया इनकम टैक्स को, ठीक है ना, कि कितना बड़ा लॉस हमारा होता है 1038 की वजह से। तो अभी इसके आगे जो हुआ, ये तो यहां तक तो हो ही गया था देश में, हाँ, अभी इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे अरुण जेटली सर आए, इन्होंने बोला 1038 को मैं अबॉलिश करता हूं, 1038 नहीं होगा। हम नहीं देंगे, एग्जाम्शन नहीं देंगे। सबको डर लगा था, बताओ कौन नाराज होगा? नहीं नहीं, सब लोग नहीं, कांग्रेस नाराज होगी तो जाने दो, लेकिन सब पूरा ग्लोब नाराज हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले एग्जेम्प्ट होता था, अभी वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और आप शेयर मार्केट को टैक्स करोगे तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टेड लोग हैं उनको क्या होगा, बुरा तो लगेगा ना रे, बहुत बुरा लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी टैक्सेबल, और उसका सेक्शन भी कौन सा बनाया उन्होंने, 112A स्पेशल सेक्शन। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन से सेक्शन में टैक्स होता है, 112। ये आपको याद रखना चालू करना पड़ेगा। कल अपने जमीन सेल की, घर बेचा, ज्वेलरी सेल किया, कोई बॉन्ड वगैरह बेचे तो क्या होगा, 112 लगेगा। कितना, 20%। किधर किधर एक्सेप्शनली 10% भी लगता है, लेकिन नॉर्मली कितना रेट है अपने देश में, 20%। लेकिन 112 में उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का टैक्स होगा, लेकिन 10% पे होगा। कितने कितने परसेंट पे होगा, 10% पे। मेरे को आपको लॉजिक पूछना है, आपके डैडी ने जिंदगी में एक बार जमीन बेची, एक बार, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, घर बेचा, कुछ तो उनको अर्जेंसी होगी तभी बेचा, उसके ऊपर गवर्नमेंट 20% टैक्स ले रहा है। और शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे गवर्नमेंट कितना ले रहा है, 10%। आपको अनफेयर नहीं लगेगा, बुरा तो लगेगा ना थोड़ा सा, आपको अनफेयर है ये क्या, नॉर्मल लोगों से आप 20% ले रहे हो और शेयर मार्केट के अमीर लोगों से। बाबा इसने, देखो सबसे पहले क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल था, तभी एसटीटी नहीं था। फिर क्या लाया गवर्नमेंट ने, एसटीटी, तो कैपिटल गेन का टैक्स विड्रॉ किया। अब इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स किया तो एसटीटी विड्रॉ करना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बोलते एसटीटी तो देना ही है, तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भी आप टैक्स दे रहे हो और गेन पे भी टैक्स दे रहे हो, तो डबल टैक्सेशन हो गया। और तो और सुनो, ये गेन निकालने के टाइम पे जो एसटीटी भरा है उसका डिडक्शन भी नहीं देंगे। इसलिए आप साहब जब रिटर्न भरते हो तो एसटीटी में बोलता हूं कि वो जो स्टेटमेंट आती है हमारे पास क्लाइंट की, उसमें से एसटीटी माइनस मत करना।
बाकी ब्रोकरेज वगैरह करोगे चलेगा, लेकिन एसटीटी माइनस नहीं करना है, क्योंकि लॉ ने क्लियर लिखा है कि एसटीटी का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल यू आर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब ट्रेडिंग ही आपका बिजनेस है, आप ट्रेडर हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेडर नहीं, हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, हम किसी म्यूचुअल फंड के ऑडिटर नहीं है साहब। तो जो हार्डकोर ट्रेडर है जिसका मेन बिजनेस ही ट्रेडिंग है, उसको पीजीबीपी का चैप्टर लगता है। मैं कैपिटल गेन की चैप्टर की बात कर रहा हूं आपको, ये कैपिटल गेन का सेक्शन है 112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा, मतलब आप समझते हो ना कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं हम। तो नॉर्मल कैपिटल गेन जो है वो कितना टैक्स होता है, 20% पे लॉन्ग टर्म वाला, और शेयर मार्केट वाला कितने पे होता है, 10% पे। ये समझ में आ रहा है? जब इन्होंने ये सेक्शन लाया 2018 में, जब ये सेक्शन लाया, अच्छा इसका अनाउंसमेंट किस में होता है, बजट में। बजट अभी 1 तारीख को आता है, तो 1 फेब 2018 को बजट अनाउंस हो रहा था। अब मैं टैक्स का प्रोफेसर हूं तो बोलो मैं तो बजट देखते रहूंगा ना। और 1 फेब 2018 पे मेरा भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट था, और मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों किया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था थोड़ा बहुत। मेरा कितना इन्वेस्टमेंट था, मेरा टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू 2-3 लाख रुपया था, सारा भी बेचा तभी भी गेन मुझको 20-25 हजार के ऊपर तो होने वाला नहीं था। सबसे पहला रिलैक्सेशन जो इन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि ये इमीडिएट इफेक्ट में नहीं आएगा, सेक्शन इमीडिएट इफेक्ट में नहीं आएगा। मतलब आप आज अभी के अभी पैनिक होके बेचना चालू मत करो, नहीं तो मार्केट क्रैश होता उस दिन। टैक्सेबल ऐसे आग लग गया ऐसा होता है, फिर वो शेयर मार्केट में आग लग गई, भागो 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 बेच के टैक्स लग जाएगा। उन्होंने पहले बोला घाई मत करो, आपको मार्केट आज बजट के दिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, डांस करता है, आज आपको डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास 2 महीने, कितने महीने, 2, पूरा फेब है, पूरा मार्च है। ये सेक्शन जो होगा वो एप्लीकेबल होगा 1/4/2018 से, तो ये इसका एप्लीकेबिलिटी का डेट है 1/4/2018। तो 2 महीने दे दिए उन्होंने, 2 महीने में मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है। हमें लगा था बहुत सारे इन्वेस्टर नाराज हो जाएंगे, शेयर मार्केट से चले जाएंगे, एफआईआई रिटर्न चली जाएंगी, ऐसा उन्होंने धमकी भी दिया कि मार्केट को अगर टैक्स करोगे हम विड्रॉ कर देंगे पैसा हमारा। अरुण जेटली सर ने बोला जिनको जाना है वो जा सकता है, टैक्स तो हम लेके रहेंगे। ही वॉज ऑल्सो वेरी फर्म फिनेंस मिनिस्टर, वेरी फर्म। मतलब अब तक के लाइफ में जितने भी फिनेंस मिनिस्टर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, जब तक अरुण जेटली सर को मैंने नहीं देखा था 2016 तक, तो माय फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह जी। देन आई सॉ हिम एंड व्हेनेवर हिज नेम कम्स आई फील सो बैड इन माय हार्ट। लाइक मेरे फैमिली में भी कुछ लोगों की डेथ हुई है, उनकी जब मुझे याद आती है तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं इनके बारे में सोचता हूँ। और मतलब इंडिया ने क्या लूज किया वो आई कैन फील, बिकॉज आई टीच टैक्सेशन। वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी वी हैड इन इंडिया, ग्रेट। मतलब इन्होंने जिस तरीके से इनकम टैक्स को देखा है वैसा आज तक किसी ने नहीं देखा। ऑब्वियसली एडवोकेट बाय द प्रोफेशन, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट थे, तो लॉ का अंडरस्टैंडिंग उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, ही अंडरस्टैंड द लॉ एंड द वे ही इज टू प्रेजेंट, वेरी फर्म, अग्रेसिव नहीं, गुस्सा नहीं, दिस इज टैक्सेबल, दैट्स ऑल। He knew how to convey. It was very tough decision, I'm telling you. शेयर मार्केट को टैक्स करना was not easy decision, क्योंकि जितने भी लोगों ने इनको मतदान किया होगा, वोट किया होगा, वो सारे कम्युनिटी के अगेंस्ट ये डिसीजन लिया गया था। और अगले साल 2019 में फिर से इलेक्शन थे। क्या रिस्क है समझ रहा है आपको? शेयर मार्केट को टैक्स किया मतलब जो बीजेपी को फाइनेंस करने वाले पार्टीज होंगी, जो लोग होंगे, उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया ना आपने। इतना आसान डिसीजन नहीं था, बट ही टुक दैट डिसीजन। मैं अपनी बात बता रहा था, जब ये टैक्सेबल किया तो मुझे भी बुरा लगा। मुझे क्यों बुरा लगा? क्योंकि मैं मार्केट में इन्वेस्टेड था, मुझे लगा यार मेरा गेन अभी एग्जम्प्ट होने वाला था, इन्होंने क्या कर दिया, इसको टैक्स कर दिया। उन्होंने बोला सुन राम पाटिल, मैं इमेजिन करता हूं मेरे से बात किया उन्होंने ऐसा, गरीब तेरे लिए नहीं लाया टैक्सेशन, शेयर मार्केट में जो 1 लाख तक कमाएगा, कितना, इस सेक्शन में अप टू 1 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं। मतलब जो गरीब लोग है, जो एक माइनर इन्वेस्टर्स है इंडिया में, जो तुम्हारे मेरे जैसे, तुम्हारे डैडी मेरे जैसे एकदम
मामूली लोग, ऑर्डिनरी लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये हार्श प्रोविजन नहीं लाई उन्होंने। उन्हें बोला आप 1 लाख तक हर साल कमा सकते हो। आपके घर में अगर 5 लोग होंगे तो आप 5 लाख आराम से टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट से कमा सकते हो। 5 डीमैट अकाउंट खोलने आपको और 5 लाख 5 लोगों का आप ट्रेडिंग वहां पे करो, 5 लाख का टैक्स फ्री इनकम आप हर साल कमा सकते हो, कोई आपके ऊपर, मतलब ये टैक्स प्लानिंग हो गई ना। ये तो इलीगल नहीं जो मैं बता रहा हूं आपको, देखो फ्री में आपको टैक्स प्लानिंग भी सिखाऊं मैं आपको अभी। तो आपको जब पता चलता है कि कोई अगर एसएससी आपके पास आता है और उसका गेन साल का 3 लाख 4 लाख होता है, तो टैक्स तो होगा ना, 1 लाख के ऊपर टैक्स होगा। तो उसको सिंपल कंसल्टेंसी क्या दोगे? अरे सर सारा ट्रेडिंग अपने नाम पे क्यों कर रहे हो? कुछ अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे अकाउंट खोल के उनके नाम पे करो ना, करो आप ही, लेकिन आप अकाउंट उनका यूज करो ना। दिस इज हाउ वी गिव द कंसल्टेंसी ना, छोटे लोगों को। बहुत बड़ा ट्रेडर है तो वो तो सुनने वाला है नहीं, बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स है जिनका करोड़ करोड़ में पोर्टफोलियो है, उनके घर पे 100 लोग, 100 लोग, 150 लोग नहीं है टैक्स। एंड दे दो, देखो टैक्स वही बचाने का सोचता है जो थोड़ा गरीब टाइप का है, मतलब अमीर में गरीब है, अमीरों में जो लोअर सेगमेंट होता है, जो अमीरों में अमीर बन गए वो टैक्स का कहां सोचेंगे? अरे तुमने मर्सिडीज बेंज ली है और तुम सोच रहे हो माइलेज ही देती नहीं है, अरे ना, वो बोला जाता है ना बुलेट, वंस यू परचेज बुलेट यू शुड नॉट थिंक अबाउट एवरेज। मुझे भी लोग पूछा करते थे आपके बुलेट का एवरेज क्या है, मैं बोलता था मुझे नहीं पता एवरेज क्या है, सच में नहीं पता था मुझे एवरेज क्या है, इतना पता था कम है। बुलेट का एवरेज कम ही होगा ना, 350 सीसी का बाइक होगा, 500 सीसी का बाइक होगा, तो आप 100 सीसी 120 सीसी के बाइक से कंपेयर करोगे तो कैसे चलेगा? तो एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था तो किसी ने मुझे एवरेज पूछा, तो मेरा एक भाई था, कजिन भाई, भाई अब क्या बोलो, अब जो भी है, शंकर दादा था मेरे साथ, तो उसने बोला ऐसा रिप्लाई में, ये बुलेट वाले लोगों को एवरेज नहीं पूछते, क्योंकि जो बुलेट लेते वो एवरेज लोग नहीं होते। आप समझ रहे हो क्या ऐसा? तो यहाँ पे भी ऐसे टैक्स भरने वालों को ये सब नहीं पूछते, क्योंकि दे आर नॉट एवरेज पीपल, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, वो माइनॉरिटी में आते हैं हमारे देश में, वो कमाते और टैक्स भरते हैं। हाँ हम लोगों को फर्क पड़ता है, हम थोड़ा थोड़ा जब कमाना चालू करते हैं इमीडिएटली टैक्स लगता है तो थोड़ा बुरा लगता है, फिर प्लानिंग करने के लिए लोग अपने पास आते हैं। आप दे भी सकते हो प्लानिंग एडवाइजरी, एकदम सिंपल एडवाइजरी कि सर 2-4 अकाउंट खोलिए, हर साल का 4-5 लाख तो आपका जो अभी टैक्स हो रहा था ना, मतलब और समझिए ना, 5 लाख अगर कोई गेन कमाता है तो 4 लाख टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 40,000 उसको टैक्स लगना था हर साल। आपने वही प्लानिंग करके हर साल का उसका कितना बचा दिया, 40,000 बचा दिया, हर साल 10,000 तो फी देगा आपको, 5,000 तो देगा। आईटीआर भरने का फी मत मांगो लोगों से, आईटीआर भी भरने का फी 500 रुपये 1,000 रुपये ही होता है, टैक्स प्लानिंग करने का, एडवाइजरी करने का पैसा होता है मार्केट में। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो छोटे लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, मेरे जैसे लोगों को छोड़ दिया अरुण जेटली सर ने, तो मैं बहुत खुश हो गया कि चल अपन तो टैक्सेबल नहीं है। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उनका वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने ग्रैंड फादरिंग क्लॉज निकाला, उन्होंने ऐसा कुछ बोला पार्लियामेंट में कि देयर विल बी ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। छोटे लोग मतलब मैं, मेरे को छोड़ दिया, अभी आपको पता अपने पास कोई फैमिलीज है, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 80 ईयर ओल्ड भी हमारे कुछ क्लाइंट है जो मार्केट में बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना, और उनका तो गेन ऐसा होता है 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ ऐसा गेन है उनका। तो कभी शेयर्स, अगर आप शेयर मार्केट में जाते हो और आप कोई अगर शेयर ओपन करते हो तो मुझे बताओ, जैसे मैं, मेरा एक फेवरेट शेयर है एमआरएफ ना, एमआरएफ मेरा हमेशा फेवरेट क्यों होता है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। एक शेयर का प्राइस 1,08,000 है साहब, ठीक है ना। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एमआरएफ का, अगर तुम्हारे माँ बाप ने जब तुमको पैदा किया था तो तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करके, हाँ तुम्हारे बर्थडे बिड्डे के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर ही खर्चा नहीं करके, ठीक है ना, अगर एमआरएफ का शेयर ले लेते तो बड़े सुकून में होते आज वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम का चार्ट डाल देता हूँ, एक ग्राफ आप देख सकते हो। एमआरएफ जब 2003 या 2002 में था, मतलब 2000 के रेंज में जब था तो 480, हाँ यहाँ पे देखो ना आप कितने का था ये, हाँ बहुत कम प्राइस पे था यार। हाँ आप 1,000 रुपया ले लो चलो, ठीक है ना, 1,000 रुपए पे शेयर्स मिलता था, मान लो आप 2,000 पे मान लो, 3,000 पे मान लो,
फिर भी चलेगा। 8,000 पे मान लो, यहाँ पे आके भी लेते तभी भी चल जाता। 10,000 पे मान लो यार, ठीक है ना, तभी भी चल जाता। आज ये शेष कितने का हुआ है? 1 लाख का हुआ है। हाँ, मतलब 10 टाइम्स तो ग्रो हो गया है। 5,000 पे लेते तो 20 टाइम्स ग्रो हो चुका है। तो ये शेयर ऐसा है। अब जिसने 3,000 पे डाला था और ये शेष 2018 में आते आते 80,000 का हो गया था, आप समझ लीजिए। किसी ने ये शेष कितने में खरीदा था? 3,000 में। 2018 में जब ये अनाउंसमेंट हो रही है तभी ये शेष ऑलरेडी पकड़ लीजिए 80,000 का हो चुका है। और आज अगर वो बेचता है, तो आज वो 1,09,000 में बेचेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका गेन कितना होगा? 1,09,000 माइनस 3,000 ना, तो इसका गेन कितना होगा? 1,06,000। तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना, पूरा टैक्स करना, पूरा गेन को टैक्स करना क्या हो जाएगा? अनफेयर हो जाएगा। इसलिए वरुण जेटली सर ने बोला मैं अनाउंसमेंट आज कर रहा हूं। आज तारीख क्या है? 1 Feb 2018। कल तक जो आपको नोशनल गेन हुआ है, कल तक, कल का तारीख कौन सा? 31 जनवरी 2018। 31, अरे आज 1 Feb है ना, आज बजट चालू है, तो कल की तारीख क्या? 31 जनवरी 2018। जब से आपने लिया था तब से 31 जनवरी तक जितना गेन हुआ है वो टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, समझा? अरे मैं अनाउंसमेंट आज कर रहा हूं ना, तो यहां से 3,000 से लेके 80,000 तक जो गेन हुआ है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो कितना टैक्सेबल होगा फिर? इसके बाद जो गेन हुआ, अब मुझे बताओ इसके बाद कितना गेन हुआ है? 80,000 और 1,09,000 में डिफरेंस कितना है? 29,000 ही टैक्स होगा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज मतलब आप मार्केट में बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हो, बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हो, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को क्या किया जा रहा है? एक्सेप्शन दिया जा रहा है कि आपका कल तक का गेन टैक्सेबल नहीं होगा। तो पैनिक कम हो जाएगा मार्केट में से, आप समझ रहे हो ना। तो इसको कैलकुलेट करने के कुछ तरीके, वो तो मैं आपको सेक्शन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताने का क्या ट्राई कर रहा था यहाँ पे, मेरी वेरी सिंपल चीज, कि मार्केट को 10% को क्यों टैक्स किया गया है और मार्केट में इतने कंसेशन क्यों दे रहा है गवर्नमेंट, क्यों दे रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मार्केट को कंसेशन क्यों है? क्यों 31 जनवरी 2018 के कॉस्ट को बेस वैल्यू पकड़ा जाता है? व्हाई नॉट ओरिजिनल कॉस्ट? ये सबका लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले लोगों का मन में था कि एग्जम्प्ट है, टैक्स है ही नहीं। अब सडनली आपने टैक्स लाया तो मार्केट में नाराजगी होगी। वो नाराजगी को रोकना था, हमें इन्वेस्टर्स को रोकना था, करके ये सारे बेनिफिट लाए गए। इसलिए 10%, इसलिए 1 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसलिए ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। और जब को जितना कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है क्या? नॉर्मली मिलता है ना, प्रॉपर्टी वगैरह लेते तो इंडेक्सेशन लगाते हो ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस बढ़ी है वो उसका बेनिफिट तो ऑलरेडी आपको दिया ना, इन्फ्लेशन के हिसाब से रियल बेनिफिट दिया। व्हाई डू यू वांट नोशनल बेनिफिट नाउ? रियली आपका जितना प्राइस बढ़ा उतना आपको बेनिफिट दिया। और एक चीज आपको नहीं देता गवर्नमेंट 112 में, दैट इज रिबेट। अरे आप बड़े अमीर लोग हो, क्या रिबेट की बात कर रहे हो आप? 112A के सामने मत करो। तो रिबेट नहीं मिलता। रिबेट जो आप पढ़ते हो 87A का, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भर के बेनिफिट दे के रखे। सर ये तो लॉन्ग टर्म की बात की आपने। लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर आफ्टर, 1 साल का तो होल्डिंग पीरियड होना चाहिए मार्केट में, तब वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की बात करो, शॉर्ट टर्म में सर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, ग्रैंडफादरिंग नहीं है, 1 लाख का बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन इंडिया में नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल मतलब जमीन वगैरह बेचोगे अगर शॉर्ट टर्म में, तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया ना। ज्वेलरी अगर आपने आज ली और 6 महीने में आप बेची तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो वो जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन होता है ना, वो स्लैब रेट पे जाता है। कौन से रेट पे जाता है? स्लैब। तो स्लैब रेट का मतलब क्या हो गया भैया? स्लैब रेट का मतलब आप मुझे बताओ, जो कैपिटल गेन कमा रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहा है, अज्यूम कर लो ना कि उसका सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम 10 लाख तो होगा। इसका ये मतलब है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसने एडिशनली कमाया हुआ है वो जाने वाला है 30% पे, ये 30% पे जाएगा। अरे यार आपने अगर घर लिया 1 करोड़ का और 1,50,00,000 में बेच दिया 2 साल के अंदर ही, कितने लाख का गेन हुआ? 50 लाख का। वो 50 लाख का जो गेन है वो टैक्स होगा ना, कौन से रेट पे होगा? स्लैब रेट पे होगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 30% पे होगा, क्योंकि उसके अलावा भी तो आपका इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल का इनकम। ये तो एडिशनली आपको मिला हुआ गेन है। तो ये एडिशनल गेन तो 30% पे जाएगा ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कितने पे जाएगा?
30 पे। तो उन्होंने बोला शॉर्ट टर्म वालों को, मार्केट वालों को बेनिफिट देना पड़ेगा हमें। तो क्या बेनिफिट दिया उन्होंने? उन्होंने बोला देखो लॉन्ग टर्म नॉर्मली 20% पे टैक्स होता है, शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कितने पे टैक्स किया? 10, मतलब आधा किया। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मार्केट में यूजुअली कितना टैक्स में होता है? 30, इसका आधा कितना? इसलिए 111A में टैक्स का रेट कितना है? 15%। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरे डैडी ने घर बेचा, मेरे से 30% ले रही है गवर्नमेंट। मेरी माँ ने ज्वेलरी बेची, उससे 30% ले रही है, और शेयर मार्केट वालों से कितना ले रहे हैं? 15%। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या भरा है? अरे एसटीटी भरा है, वो भी एक बार नहीं 2 बार भरा है। दो कौन से? एक बार परचेस करने के टाइम पे भरा और एक बार सेल करने के टाइम पे भरा। 2 बार उन्होंने एसटीटी भरा है, और अभी कैपिटल गेन भर रहे हैं, मतलब डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन हो रहा है उनके साथ। तो कंसेशन तो देंगे ना शेयर मार्केट को, इसलिए शेयर मार्केट के टैक्स के रेट कम है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया कि शेयर मार्केट के टैक्स, मुझे खाली इतना ही बताना था कि शेयर मार्केट के टैक्स के रेट कम क्यों है, बस उसी का ही मैं इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको हिस्ट्री बता के। बाकी सेक्शन तो हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे फिर से। और अभी क्योंकि अरुण जेटली सर का मैंने नाम लिया, आप देखिए कितने प्यार से वो एक्सप्लेन करते थे। पार्लियामेंट का सेशन भी आप देख सकते हो उस दिन का, लेकिन ये पोस्ट पार्लियामेंट इंटरव्यू हुआ था। आवाज क्यों नहीं आ रहा है इसका? यहां से तो फुल है। Banker this year has awarded the Global and Asia ये Pacific Award आवाज आ रहा है? for the Finance Minister of the Year. मैक्सिमम है। Mr. Jaitley. Minister, congratulations and thank you for joining us. So first off, I wanted to ask you a little bit about the budget. So there's obviously been a lot of efforts to increase healthcare coverage for the population. You've also promised an increase in the support of agricultural products. Now, how does the government plan to support these expansionary initiatives when the deficit of the budget is already a little bit above the expected target, and the government debt is already about 70% of GDP? You see, we've been gradually expanding the revenue, and our revenue expansion has been substantial. On direct taxes, we are almost likely to grow this year something close to 20%, which is a very high rate of growth, which also indicates that our tax buoyancy is over 2%, which is much higher than what the tax buoyancy used to be earlier. As far as the indirect taxation is concerned, we have the goods and services tax in place. And after the initial months, now the smoothing process is on. We are putting in place the anti-evasion measures. इसके बाद जीएसटी अनाउंस हुआ था ना 2017 में, उसके बाद का बजट है। Direct tax also. So India can hopefully look at much higher taxation in near future. On our fiscal deficits, India had a record of very high fiscal deficit at one time, and over the last few years we've been gradually bringing this down. Now we've calculated so far. The exact calculations will be done as we implement. But the rough calculations, this is affordable within the size of the Indian budget itself. One of the principal reasons why we thought we needed a proper healthcare support system in place, because we have a very large network of governmental health institutions, both by the central government and the state governments. We also have very modern institutions, healthcare institutions of international quality in the private sector. But one of the issue is cost as far as the private sector is concerned, and overcrowding as far as the state institutions are concerned. And therefore,
To start off, we made a more than a modest beginning by looking at 40% of India's population, that is economically the weakest 40%, and a state support system which ensures them against any possible hospitalization and takes care of their hospital expenses with an upper cap of rupees 5 lakhs in Indian currency, which is a substantial amount which can take care of most hospitalizations in India. And therefore, that's the scheme which we envisage. The larger the number of volumes, the cheaper is the per capita cost itself. It's based on that principle. And I wanted to press a little bit on the GST, which you mentioned, because it has been such a momentous policy. इसके पहले शेष 3% था, इसके बाद शेष 4% हुआ. वो बता रहे, उसका लॉजिक बता रहे, why 4%? Have been small businesses because there have been revisions of the GST after it was announced. And I was wondering this year how the government is planning to address these frustrations. There was an initial protest more out of shock and to some extent out of procedural difficulties faced because of change. But once over the first 2-3 months they got adjusted to it, I think things have settled down. And the GST has been fairly well accepted in India as an idea. It's being implemented well. As far as small businesses are concerned, we've given them a very nominal tax rate. Composition skill. That is, the small businesses in India can just pay 1% of their turnover. And that's the tax rate. And therefore, the tax burden on them is most minimal. And lastly, I wanted to ask you about corporate taxes more generally. There was an idea a few years ago, you hinted at potentially decreasing the rates. And is that possible? We've already started that process. Last year, I took the first step. This year, I took a major step. That up to 250 crore, which is 2,500 million Indian rupees, companies with a turnover up to that, their corporate tax has been reduced by 5%. And this now includes 99% of all companies in India. So you still have about 7,000 big companies which are out. ये लॉजिक भी समझो अभी आप लोग. कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी इंडिया में 30% ही है. वो रिड्यूस किया उन्होंने इस साल से. पहले 250 करोड़ की टर्नओवर के लिए एप्लीकेबल था, अभी कितना है? 400 करोड़. तो जिनका टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे है उनके लिए टैक्स रेट कितना है? 25%. अभी तभी 250 था, लेकिन अभी कितना लेटेस्ट लॉ क्या है? 400 करोड़. और उन्होंने क्या बोला? 99% कॉर्पोरेट्स क्या हो जाती है, उसमें कवर हो जाती है लोअर टैक्स रेट में. मतलब बची कितनी? 7,000. वो जो 7,000 कंपनीज है ना, 7,000 कॉर्पोरेट्स, देश एक्चुअली वही चला रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स वही 7,000 कॉर्पोरेट्स भर रही है. ओके. Outside this, but availing of a large number of exemptions, most of them are still paying much lesser than the 25% tax that I have fixed for the smaller ones. Perfect. Well, thank you very much for joining us and congratulations. Actually, sir, movies में अच्छी लगती है. Holiday booking के लिए Alberta. Alberta. You don't need to play कौन बनेगा करोड़पति in order to become a करोड़पति. You can learn prompt engineering and get एक NSP पे और एक हेल्थ केयर. मैंने इस बार एक टैक्स लगाया है जिसको लेकर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बहस भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, मैं इसके साथ जोड़ के आपको बतलाता हूं. जो व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो खरीदते हैं और बेचते हैं और पहले 1 साल के अंदर मुनाफा कमा लेते हैं, उन पे 15% टैक्स लगता है. जो 1 साल से ज्यादा रखते थे और लॉन्ग टर्म रखने के बाद बेचते थे, उनको टैक्स से मुक्त किया हुआ था. केवल पिछले वर्ष, और इसमें कौन लोग हैं? छोटे निवेशक बहुत कम हैं, और इसलिए मैंने कहा जो 1 लाख रुपए तक कमाएगा स्टॉक मार्केट से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो छोटा निवेशक है. लेकिन इसमें कौन है? फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं. आप अंदाजा लगाइए कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था केवल स्टॉक मार्केट का, जो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट पिछले असेसमेंट ईयर में, जिसका एग्जेम्पशन मिला.
3,67,000 करोड़, ठीक है ना? 3,67,000। तो तब भी की बात बता रहे, 3,67,000 करोड़ के ऊपर हमको टैक्स मिलता अगर गवर्नमेंट टैक्स तभी कर लेता तो, ठीक है ना? उतना बड़ा ह्यूज अमाउंट टैक्स हमें नहीं मिला है क्योंकि उतना वो शेयर मार्केट एग्जेम्प्ट था। crore was the exempted income on long-term capital gains. और हर सरकार करती थी, और जो समाज के सबसे अमीर लोग हैं, सबसे अधिक साधन जिनके पास है, वो ये पैसा कमा रहे थे और उनको टैक्स से पूर्ण मुक्ति। आप इस पे टैक्स लगाओगे तो 2-4 दिन के लिए बाजार में उथल पुथल होगी और हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मुश्किल निर्णय लेने में कई बार उनको आनंद भी आता है। डिमोनेटाइजेशन सरल विषय नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे लॉजिक अब क्या है। हम जब कमजोर अर्थव्यवस्था थे, हमें बहुत पूंजी चाहिए थी, तब तो ठीक था, लेकिन आज जब बाजार 36,000 पे पहुंचा हुआ है, तो आज नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? 800 पॉइंट नीचे आया है, तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक कॉस्ट है, लेकिन उसके ऊपर 10% टैक्स हमने लगाया है, 10%। एक बात मुझे बताइए, नहीं आप पूरा मेरा लास्ट वाक्य सुन लीजिए। जो उससे कलेक्शन होगा वो अपने आप में इन दोनों बड़ी योजनाओं को फंड करने के लिए पर्याप्त है। और आज तक क्या आर्थिक प्लानिंग थी, हमने उसको छोड़ा हुआ था। केवल उस 3,67,000 करोड़ के प्रॉफिट के 10% अगर आ जाए तो वो मोर देन सफिशिएंट है इस देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए। Health and education cess. Madam, at present there is a 3% cess on personal income tax and corporate income tax, consisting of 2% cess for primary education and 1% cess for secondary and higher education. In order to take up the needs of education and healthcare and BPL, I have announced in part A of my speech. To fund this, I propose to increase the cess by 1%. The existing 3% cess will be replaced by a 4%, 102 cities, with an objective of reducing in a pilot basis, and in 2017 extended it to 102 cities with an objective of reducing the interface between the department and the taxpayer. With the experience gained so far, we are now to roll out an e-assessment across the country, which will transform the age-old system of procedure of the income tax department. मार्केट रेड हो गया, देख रहे हो ना आप? जब ये अनाउंस हो रहा था, मार्केट का नंबर आ रहा दिख रहा है आपको कॉर्नर में, BSE मिड कैप वगैरह, मार्केट गिरना चालू हो गया। क्यों? मार्केट पे टैक्स अनाउंस हो गया ना, तो पैनिक क्रिएट होता है। और अभी भी उन्होंने बोला ना 800 पॉइंट से गिरा था, तभी मार्केट 36,000 पे था, अभी 50,000 क्रॉस हो गए। मतलब लोगों ने हमको खाली उल्लू बना के रखा था कि देखो टैक्स लगा दोगे तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे, जा नहीं रहे। लेकिन वो we interact with the taxpayer and the stakeholders. Accordingly, I propose to amend the Income Tax Act to notify a new scheme for assessment, whereby the assessment will be done in an electronic mode, which will almost I guess इसके पहले ही हो गया। any person-to-person contact, leading to greater efficiency and transparency. My term capital gains. Madam Speaker, currently the long-term capital gains arising from transfer of limited equity shares, units of equity-oriented funds, and unit of a business trust are exempted from tax. With the reforms introduced by the government and the incentives given so far, the equity market has become buoyant. The total amount of exempted capital gains from the listed shares of units is around 3,67,000 crores as per return 5 in the assessment year 2017-18. Major part of this gain has been accrued by corporate and LLPs. This has also created a bias against manufacturing, leading to more business surpluses being invested in financial assets. The return on investment in equity is already attractive even without tax exemption. There is therefore a strong case for bringing the long-term capital gains from listed equities into the tax net.
However, recognizing the fact that a vibrant equity market is essential for economic growth, I propose only a modest change in the present regime. I propose to tax such long-term capital gain exceeding rupees 1 lakh at the rate of 10% without allowing the benefit of indexation. However, all gains up to 31st January 2018, that is today, will be 31st January. grandfathered. For example, if an equity share is purchased 6 months before 31st January 2018 at rupees 100, and the highest price quoted on 31st January 2018 in respect of the share is rupees 120, there will be no tax. सेंसेक्स देखो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से गिर गया इतने 2 मिनट में ही, जब तक अभी स्पीच चालू है। तो दैट्स हाउ इट गोज मार्केट में। 10-15 पॉइंट से हिलता है तो गड़बड़ होती है, तो डायरेक्टली 100 पॉइंट से गिरना चालू हो गया। तो ऑब्वियसली आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट ही इज सेइंग। पूरा स्पीच सुनना है तो आप जाके सुन सकते हो 2018 के बजट का, लेकिन द क्लैरिटी विथ विच ही इज टू ब्रिंग द अमेंडमेंट, फेसलेस असेसमेंट उन्होंने लाया था। आज मैं उनके लिए इतना सेंसिटिव इसलिए हूं क्योंकि अगर वो नहीं होते तो गुरुकुल पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों गुरुकुल पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि गुरुकुल का आइडिया 2018 के पहले मतलब 2017 में हमको आया था, बट हमें हिम्मत नहीं था मुंबई छोड़ के यहाँ पे आने का। सर हिम्मत क्यों नहीं था छोड़ के आने का? क्योंकि हर हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भागना पड़ता था, हर हफ्ते जीएसटी डिपार्टमेंट भागना पड़ता था। इनकम टैक्स ऑफिस के बाजू में आपका ऑफिस होना चाहिए, मतलब क्विकली, क्योंकि केसेस चालू रहने हैं ना आपके क्लाइंट है तो कोई ना कोई तो केस चालू ही रहेगी, आपको बार बार जाना पड़ेगा ऑफिसर के पास। तो आपको सिटी में रहना बहुत जरूरी होता था। मेरा जब आउट स्टेशन लेक्चर्स होते थे केरला वगैरह में, तो आई यूज्ड टू फील लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट कि यार मेरी हेयरिंग लग गई है। कभी कभी केरला से मुझे मुंबई में बाय फ्लाइट आना पड़ता था, खर्चा करना पड़ता था, ओनली बिकॉज आई हैव हेयरिंग टुमारो। अब वो सब कुछ क्या कर दिया उन्होंने 2018 से एलिमिनेट कर दिया। डिपार्टमेंट में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। 24/7 आप काम कर सकते हो इनकम टैक्स पे, कहीं से भी कर सकते हो रिमोटली। दैट्स द रीजन आई एम थैंकफुल। मतलब जब आइडिया आया था गुरुकुल का तब मुझे नहीं पता था गांव में जाके मैं कमाऊंगा कैसे। टुडे वी हैव द फुल मैकेनिज्म यहाँ पे, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हिम because he brought the faceless assessment, he brought that 100% digitalization, he brought GST which is 100% digitalized। day one से वो digitalized था, लेकिन VAT, excise, customs, सर्विस टैक्स वैसे नहीं था। पुराने लॉ सारे क्या थे? फिजिकल थे। बहुत सारी काम फिजिकल होते थे। ऑफिसर से आपको पहचान बनाने रखती थी, अरे सर रहने दीजिए मेरा क्लाइंट है, नोटिस मत भेजिए, अरे क्या नोटिस भेज दिया, ये सर एडजस्ट कर लीजिए। ये सब बहुत बड़ा बिजनेस होता था पहले, अभी वो सब कुछ रुक गया। तो वी आर लकी टू हैव हिम and the budgets that he brought. So this is the logic why special rates of tax in income tax law is 10% and 15% on share market। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, मॉडरेट रेट लाना है, मुझे बहुत ज्यादा रेट नहीं लाना है, ठीक है ना। तो सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसटीटी विड्रॉ होगा, उन्होंने बोला नहीं, वही कंडीशन है, एसटीटी विड्रॉ नहीं होगा। और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है उसको क्यों विड्रॉ करें हम? इसलिए 112A आया जिसका रेट कितना है 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अबाउ 1 लाख। लेकिन ग्रैंड फादरिंग आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रैंड फादरिंग कौन सा डेट है? 31 जनवरी 2018। मतलब इसके पहले अगर शेयर्स लिया होगा वहां से लेके इस तारीख तक जितना गेन हुआ है वो गेन टैक्स नहीं होगा। 31 जनवरी के बाद जितना गेन हुआ है 2018 के बाद, उतने ही गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। एम आई क्लियर? आपको हमेशा ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा कि जब लिया था प्राइस 200 रुपया था, 31 जनवरी 2018 पे प्राइस 500 रुपया हुआ, मैंने 550 पे बेचा, तो एक्चुअली आपको गेन जो है 550 माइनस 200 मतलब 350 का गेन हुआ है। लेकिन 350 टैक्स नहीं होगा। कितना टैक्स होगा? ओनली 50, क्योंकि यहां से यहां तक का जो गेन है ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला समझा? और इसलिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि इंडेक्सेशन आप 200 को लगाते हैं ना। अरे 200 आपका कॉस्ट है ही नहीं, अब आपकी कॉस्ट ही कितनी बना दी उन्होंने? 500 बना दी। आर यू गेटिंग दिस? दूसरी बात समझो आप, मैंने एक बात बताई आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब एग्जेम्प्ट था 1038 के टाइम पे, तब उसका जो शेयर मार्केट का लॉस होता था उसका सेट ऑफ नहीं मिलता था। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया, ये हैंग क्यों हो जाता है बीच बीच में? क्या करूं अभी?
अरे ये कर रहा हूं तो चालू है। तो आप समझिए कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी टैक्सेबल हुआ है, तो टैक्सेबल हुआ है तो उसमें जो भी शेयर मार्केट में लॉसेस होते हैं उसका क्या मिलता है, अभी सेट ऑफ मिलता है। और ऐसा बिल्कुल अजम्पशन मत रखिए कि शेयर मार्केट का लॉस का सेट ऑफ खाली शेयर मार्केट के सामने ही मिलता है, नहीं। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने क्या बोला समझा? मतलब एक जगह पे आपका शेयर मार्केट में लॉस है और दूसरा आपने जमीन बेच के गेन कमाया हुआ है, इन दोनों का सेट ऑफ हो सकता है, सब्जेक्ट टू दोनों क्या हुए, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं होता, लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ नहीं होता, या किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता। लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये नियम है। तो अभी सेट ऑफ का भी बेनिफिट एक्टिवेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि सोर्स टैक्सेबल हो गया। तो भैया ये 10% तो टैक्स रेट का आपको मैंने बता ही दिया, तो ये 10% का टैक्स है अबाउ 1 लाख, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ऊपर से ग्रैंडफादरिंग क्लॉज 31 जनवरी 2018। फिर मैंने क्या बोला, कंडीशंस क्या होती है, मैंने क्या बोला कंडीशंस क्या होती है कि एसटीटी पेड होना चाहिए, एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर इक्विटी शेयर है तो बोथ टाइम मतलब एट ए टाइम ऑफ परचेस एंड एट ए टाइम ऑफ सेल, और यूनिट्स ऑफ ओरिएंटेड फंड है मतलब म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना, तो ओनली एट ए टाइम ऑफ सेल। तो इन्होंने ऐसे बताया हुआ है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो सेम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड अगर है तो 15%, 111 में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रेट हो गए साहब। इसके अलावा आपको स्पेशल रेट कौन से देखने हैं, देखिए। इंडिया में अगर आपने नॉर्मल लॉन्ग टर्म गेन कमाया तो कितना टैक्स होगा, 20%। मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूं, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट का नहीं, कोई भी नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भैया नॉर्मल है, नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है। नॉर्मल रेट्स मतलब समझ रहा है कि अभी 115 बीएससी में रहोगे तो 115 बीएससी पे टैक्स होगा वो, और ऑप्शनल रिजिम में जाओगे तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5% ऐसा टैक्स होता है। वो नॉर्मल इनकम है, सैलरी वगैरह की जैसे जैसे वो मर्ज हो जाता है। तो ये इतना कैपिटल गेन की मैंने बात बताई। ये तो मैंने आपको पहले से बता के रखा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है ना। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, अदर गेम्स एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बेटिंग। लेकिन ऑनलाइन गेम छोड़ के, ऑनलाइन गेम को इस सेक्शन में टैक्स नहीं करना है आपको। इसका टैक्स का रेट कितना है, 30% विदाउट एनी डिडक्शन। मतलब लॉटरी आपने 1000 रुपए की खरीदी, बाद में 1 लाख रुपया कमाया आपने, 1000 रुपए की लॉटरी खरीदी और 1 लाख रुपया कमाया, तो 99,000 का गेन हुआ ना। ये लोग बोलते हैं नहीं 1 लाख रुपए का गेन हुआ, मतलब जो कॉस्ट ऑफ लॉटरी है वो भी माइनस नहीं करने देते ये लोग। जो गेन अमाउंट है डायरेक्टली टैक्स होता है। यहां तक क्लियर है? और इसके सामने कोई सेट ऑफ नहीं, सर मुझे लॉस भी हुआ था, मैंने 4 लॉटरी निकाली उसमें लॉस हो गया, या 4 बेटिंग लगाए थे उसमें लॉस हुआ, 5वें में गेन हुआ। जो 4 में लॉस हुआ गवर्नमेंट इग्नोर करता है, और जो 5वें में गेन हुआ खाली वो उतना ही टैक्स करता है। बड़ा सेल्फिश है गवर्नमेंट यहाँ पे। मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट बता रहा है ये धंधे करो मत, और करोगे तो पूरा टैक्स भरो, ठीक है। दूसरा एक नया सेक्शन लाया उन्होंने, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री का इंडिया में स्कोप बढ़ गया है सडनली। आपको पता है गेमिंग इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज नाउ। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा कि खाली एंटरटेनमेंट के लिए लोग दिखते थे। नाउ सम पीपल आर टेकिंग गेमिंग इंडस्ट्री एज अ प्रोफेशन, ठीक है ना। तो इसलिए ऑनलाइन गेमिंग को भी टैक्स करना था, लेकिन जैसे ये ग्रॉस टैक्स होता है, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट टैक्स होता है ना, तो ग्रॉस अमाउंट टैक्स नहीं होना चाहिए, नेट अमाउंट टैक्स होना चाहिए। इसलिए नया सेक्शन लाया गया 115 BBJ। ये क्या था, बीबी बड़े बाजीगर, ठीक है ना, BBJ लाया गया ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन गेमिंग में एक वर्ड लिखा गया है नेट, नेट विनिंग ही टैक्स होगा, मतलब डिडक्शन देंगे आपको कुछ किसी ना किसी चीज का। आपने अगर 5 गेम खेले, 4 गेम में लॉस हुआ, 1 में गेन हुआ, तो उसका आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। तो नेट कैसे निकालते हो पूरा का पूरा हम जब सेक्शन पढ़ेंगे तब वी विल डिस्कस, बट राइट नाउ यू प्लीज रिमेंबर द रेट कितना, 30%। लेकिन ग्रॉस पे नहीं, इसमें और इसमें फर्क क्या है समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पे ग्रॉस टैक्सेबल होता है और यहाँ पे नेट टैक्सेबल होता है। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 60 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट एग्रीगेशन। मैंने आपको कल परसों ये सवाल पूछा था, आपने मुझे जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था आपने मुझे, कि 100 करोड़ रुपए अगर आपके पास होगा तो आप कैसे बुक में लेकर आओगे। तो आपने मुझे बताया ना कि आप लोन लेकर आओगे, अपने एम्प्लॉय में बांटोगे, उनसे क्या लोगे आप, लोन दिखाओगे, गिफ्ट दिखाओगे, कैश सेल्स दिखाओगे, या खर्चा कर दोगे, बुक में लाओगी नहीं, शादी के ऊपर खर्चा कर दोगे, फॉरेन टूर के ऊपर खर्चा कर दोगे, कोई प्रॉपर्टी परचेस कर दोगे। और प्रॉपर्टी परचेस करोगे तो बताओगे थोड़ी ना कि प्रॉपर्टी परचेस किया है। गोल्ड वगैरह बुलियन परचेस करके, सोना का ईटा खरीद के घर पे रखोगे।
लेकिन ये कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। मान लो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो पकड़े जाओगे तो क्या होगा, टैक्स होगा। तो जब आपके घर में जब अनडिस्क्लोज मनी है, अनडिस्क्लोज इनकम है, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है, तो टैक्स कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? अप टू 2.5 लाख नील, या डिफॉल्ट रिजीम में जाओगे तो अप टू 3 लाख नील, उसके बाद 5%, उसके बाद ऐसा। अरे वो तो तब होना था जब ये व्हाइट मनी था, अभी ये ब्लैक है। तो इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट कितने पे टैक्स करता है? 60, सबसे हाईएस्ट रेट है ये। और खाली 60% नहीं लेता, बोलता है 25% सरचार्ज लेगा मैं इसका। अब 60 का 25% निकालोगे तो 75% होता है 60 का। 100 रुपीज अगर आपके पास अगर ब्लैक मनी होगा, 100 रुपीज का 60% कितना आता है राजा? 60। इसके ऊपर 25% टैक्स लगाना है, सरचार्ज लगाना है, तो ऐड कर। सरचार्ज 25% निकालो, 60 का 25% निकालो, कितना आता है? 15। तो अभी तक कितना हुआ? 75। और इसका क्या लगाना है? 4% सेस। तो 4% सेस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये बोलने के लिए 60% वो है, लेकिन ये टैक्स का रेट कितना है? 78% टैक्स का रेट है साहब यहाँ पे। ठीक है, इसको अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं। तो दीज आर द टैक्स रेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड करो अनडिस्क्लोज इनकम का। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 78% कैसे आता है। सर इतना ही लेंगे क्या? जी नहीं साहब, आपका 10% पेनाल्टी भी लेंगे और 7 साल तक की जेल भी हो सकती है आपको, ये मैंने आपको बता के रखा है। 10% पेनाल्टी भी लेते हो, 7 साल की जेल भी होती है। सर इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बताइए। थोड़ा डिटेल मतलब ऐसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, एक टाइम आने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत जानना चाहते हो इसके बारे में, आई डोंट नो उन्होंने कहा लिखा है, ऊपर लिखा होगा। ये देखो, पहले ही चैप्टर में उन्होंने डरा दिया आपको, अनडिस्क्लोज इनकम कमाने का नहीं भाई। अनडिस्क्लोज इनकम में का सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? कैश क्रेडिट। आपके बैंक अकाउंट में या आपके कैश बुक में, बैंक बुक में या कैश बुक में क्रेडिट साइड पे पैसे आए हुए हैं जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो। आपके पास बैलेंस शीट आती है साहब, लोन टेकन, लोन गिवन, आप देखते रहते हो। अभी कल भी मैडम मुझे कुछ पूछ रही थी कारों का रिपोर्टिंग करने के टाइम पे कि अनसिक्योर्ड लोन आया हुआ है। आज की तारीख में कौन देता है 5-5, 10-10 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन एक दूसरे को? आप दो ना मुझे 1-1 करोड़ रुपया। कोई देता है क्या? वो भी इंटरेस्ट फ्री। मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, अगर किसी से मैंने पैसे लिए मेरे अकाउंट में और मैंने लोन की एंट्री मार के रखी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, मेरा ही पैसा है ना, जो ब्लैक में मैं घुमा रहा हूं। मैंने एम्प्लॉयज के अकाउंट में बांट दिया और एम्प्लॉय को बोला हमको अभी क्या दो, लोन दो। या मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया और उनको बोला अभी मुझे लोन दो। तो ब्लैक का व्हाइट कन्वर्ट कर रहे हैं लोग। तो आपको नहीं लगता पकड़ना चाहिए, बैठना चाहिए, मारना चाहिए आपको? ठीक है ना। गिफ्ट फ्रॉम फादर एग्जम्प्ट है, मैंने बताया आपको, गिफ्ट फ्रॉम फादर एग्जम्प्ट है। लेकिन पाप के अकाउंट में आपने क्या किया, 50 करोड़ डिपॉजिट कर दिया और बोला पापा मुझे गिफ्ट दो। हाँ, और आपको नोटिस आ गई, 50 करोड़ कहां से आया? आपने बोला गिफ्ट फ्रॉम फादर, रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, एग्जम्प्ट है। उन्हें बोला फादर का आईटीआर दिखाओ, आप बोलते हो फादर का आईटीआर मुझको मत पूछो, उसको पूछो। और उसका आईटीआर खो रहे तो उसने 25 साल से आईटीआर भरा ही नहीं है, मतलब वो गरीब है बेचारा, और उसने आपको 50 करोड़ रुपया दिया, कैसे मैच होगा? एक ये ब्लैक मनी है। तो अभी उन्होंने अमेंडमेंट करके क्या बोला, अभी आपको खाली सोर्स ऑफ इनकम नहीं डिफाइन करना है। आपके अकाउंट में अगर पैसे आते हैं ना, तो खाली वो नहीं प्रूव करना है कि कहां से आए, आपको एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, आपको सोर्स ऑफ सोर्स भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला तुमको समझ में आना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो आपको खाली ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि आपके अकाउंट में कहां से आए, आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनके अकाउंट में कहां से आए। मतलब आज अगर 50 एम्प्लॉय ने मुझको 2-2 लाख रुपया दिया, तो मुझे नोटिस आएगी कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा है। मैं बोला मेरे मेरे एम्प्लॉयज है, फ्रेंड्स है, स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे लोन दिया। गवर्नमेंट बोलेगी साहब अब ये एक्सप्लेन करो उनके पास कहां से आया। मैं बोलूंगा वो तो मेरा काम नहीं है ना, आप उनको नोटिस भेजो। ऐसा नहीं, अभी सेक्शन अमेंड हो गया, देखो आप एकदम क्लियरली। अगर आपके पास कोई लोन एंड बोरोइंग आता है, आपके पास अगर कोई भी लोन्स एंड बोरोइंग का एंट्री आपके बुक में, मोस्टली वो झोल है, वो पैसा इनका ही है, घूम के आया हुआ है खाली, ठीक है ना। तो वेयर सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट लोन और बोरोइंग इन और एनी सच अमाउंट और वॉट एवर नेम कॉल्ड, लोन हो, बोरोइंग हो, लोन एडवांस हो, कोई भी नाम रखो आप, है वो लोन ही, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटी में आपके समझो आप, ठीक है ना। एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द असेसी इन हुज बुक्स
सच सम इज क्रेडिटेड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी। बोलता है सेटिस्फैक्टरी ऐसे मानेंगे ही नहीं। कब तक? अनलेस अ पर्सन हुज नेम in whose name such credit is recorded in the books of account of such assessee also offer explanation about the nature and source of such sum so credited। आप समझ रहे हो ना, जिसने आपको पैसे दिए उसके पास पैसे कहां से आए वो आपको बताना पड़ेगा। ये सोर्स ऑफ सोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ एओ हैज बीन फाउंड सैटिस्फैक्टरी। जब तक एओ सैटिस्फैक्टरी नहीं होता तब तक माना जाएगा कि आपने जो किया है। वेरी डेंजरस सेक्शन। शेयर कैपिटल का भी वैसा ही है। मुझे बताओ, आज अपने कंपनी का शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 15 रुपया है, तो 15 रुपए में जाना चाहिए ना, 10 रुपया फेस वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू कितना आया हुआ है 15 रुपीज। लेकिन मैंने शेयर 2000 में इश्यू किया और लोगों ने खरीद भी लिया। उनको शेयर मार्केट में नहीं जाना था, अपनी कंपनी का अनलिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदना था। ऐसा होता है क्या कभी? 15 रुपए का शेयर तो 2000 में खरीदेगा क्या? लेकिन क्यों खरीदा बताओ? वो शेयर खरीदने के लिए पैसे किसने दिए होंगे? कंपनी नहीं दिए होंगे ना रे, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी तुमने 100 लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट किया, उनको बोला अभी मैं शेयर इशू करने वाला हूं, आप परचेस करो। तो जो शेयर प्रीमियम आता है अबाउ द फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर प्रीमियम अबाउ द फेयर मार्केट वैल्यू, वो भी टैक्सेबल है। क्या रेट पे? 78% पे। मतलब आपको लगता होगा कि इनकम टैक्स वाला टैक्स खाली पीएनएल के इनकम साइड पे लेता होगा ना, ये इनकम होता है ना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे भी वो ले रहा है, शेयर कैपिटल के ऊपर भी टैक्स लगा रहा है, और लोन्स के ऊपर, लोन्स अगर आपने लिया होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते ये क्या हो रहा है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को टैक्स कर रहा है, मतलब बताने के लिए आपकी वो लाइबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो चुनाव लगा रहे हो तुम। अरे तुम्हारे पास अगर इनकम आया होगा तुम्हारे अकाउंट में, गूगल पे से पैसे आए रहेंगे और तुमको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, जीएसटी नहीं भर रहा है, तो क्या एंट्री मारोगे आप? प्रैक्टिकल बात करो। आपके अकाउंट में पैसे आए, 25 लाख आए आपके अकाउंट में आज, और आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, तो सेल्स की एंट्री मारेगा? तो क्या एंट्री मारेगा? लोन्स। और कंपनी होगी तो शेयर कैपिटल। मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, आप दिखा रहे हो कि कैपिटल है या लोन है, लेकिन सबको पता है कि ये ना लोन है ना जेन्युइन कैपिटल है। तो भैया ये शेयर कैपिटल को भी गवर्नमेंट टैक्स करता है, आप समझो, लोन्स को भी टैक्स करता है। बड़ा डेंजर प्रोविजन है ये। चलो आगे आगे जाता हूं, आगे जाओ। ये तो क्या किया उसने, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को टैक्स किया। आगे देखो, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट है साहब, मिल गई गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कहां से मिलती है? एआईएस टीआईएस में से मिलती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और अब तक अपने बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई, ठीक है ना। Where in any financial year immediately preceding the assessment year, assessee has been made an investment which is not recorded in the books of account and assessee offers no explanation। गवर्नमेंट आपको पूछ रहा है कहां से आई है इन्वेस्टमेंट आपके पास, आप बता रहे हो नहीं पता मुझे, या आप एक्सप्लेन कर रहे हो सर आई थोड़े पैसे जमा किए थे पिगी बैंक में, वो फोर्ड की इन्वेस्टमेंट ली, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि इतना बड़ा पिगी बैंक, ठीक है ना, कितने पिगी बैंक थे आपके पास, ठीक है ना। तो ऑफर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ एओ। तो वो जो इन्वेस्टमेंट था उसको डीम्ड इनकम बना दे रहे हैं। बाप रे, कहां चले गए ये लोग? लाइबिलिटी साइड से कहां चले गए? आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में चले गए ना रे। तो इन्वेस्टमेंट यहां होती है ना, बोलते आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट आया 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 100 करोड़ का अचानक, मतलब इसके पहले कभी ना कभी कमाया होगा ये ब्लैक, तभी नहीं पकड़ा आपको, आज पकड़ देंगे आपको, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे पकड़ लेंगे। ओके, तो हो गया जो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अनएक्सप्लेन मनी, अब इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, घर पे पैसा ही है, ब्लैक का पैसा ही पड़ा आपके मिला आपके पास, सोने के बिस्किट मिले, वो मैंने आपको रेड मूवी देखने बोला था, ऐसे नोटों के बंडल मिलते हैं, सोने के बिस्किट मिलते हैं, नेकलेस मिलते हैं, ज्वेलरीज मिलती है, और जो बैलेंस शीट में नहीं है, रेड मूवी में आपको दिखाया होगा, जो शुरू में ज्वेलरी मिलती है पहले दिन पे, उसके सारे बिल दिखाते हो, अगर आपको याद आ रहा है तो, उसको एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हम, क्योंकि उसके बिल दिखाया आपने। ज्वेलरी तो जो बाद में पकड़ी गई, वो ऊपर से जो बिस्किट गिरे, वो अनएक्सप्लेन्ड है। मैं क्या बता रहा हूं, समझ रहे आपको?
तो वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर असेसी इज फाउंड टू बी ओनर ऑफ एनी मनी बुलियन, बुलियन क्या होता है? सोने के बिस्किट, ठीक है ना, सोने की ब्रिक्स, ईटा बोलते हैं वो लोग जिनके पास होता है, ईटा, ईटा, सोने का ईटा, ठीक है। ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, कोई पेंटिंग वगैरह भी आपके पास, ठीक है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, भैया रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में आपने, तो टैक्स लगा जाएगा, अभी अनरिकॉर्डेड है ये। आपको पता है अपने देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम गरीब है, गरीब है, गरीब है, लेकिन ज्वेलरी सबके घर में होता है कि नहीं? एक्टिंग करते गरीब होने का, लेकिन ज्वेलरी सबके पास होता है। और एक बात बताऊं आपको, उनके पास वो ज्वेलरी हो, उन्होंने इनकम टैक्स को कभी नहीं बताया। बताया क्या कभी? तो कौन सी ज्वेलरी हो गई? अनएक्सप्लेन्ड हो गई, अनरिकॉर्डेड हो गई, उसके बिल्स भी नहीं होंगे अभी इनके पास, क्योंकि बहुत पुरानी होती है, बिल कौन संभाल के रखता है? तो जब कभी इनकम टैक्स की रेड आएगी आगे जाके, जब आप अमीर हो जाओगे, तो वो ज्वेलरी भी जो मेहनत से कमाई थी वो भी टैक्स हो जाएगी। इसलिए आप जब मेरी बैलेंस शीट ओपन करते हो, जिन्होंने भी रापा की बैलेंस शीट बनाई है, उनको पता है कि उसमें सारी ज्वेलरी जितनी भी मैंने खरीदी हुई, छोटी मोटी, ज्यादा खरीदी नहीं है, मेरी रिकॉर्डेड है, जीएसटी बिल के साथ हमने लिए। तो ज्वेलरी लेते तो आपको भी वो ध्यान रखना है कि आप बिल ओरिजिनल वाला, जीएसटी वाला बिल लो। ऐसा कोई सोनार नहीं होगा जिसका टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, भंगार वाले से ज्वेलरी मत लो। तो सोनार से ज्वेलरी लोगे तो जीएसटी बिल होगा तो ही ओरिजिनल हो गया वो, अगर जीएसटी बिल नहीं तो डुप्लीकेट है। तो पहला तो जीएसटी बिल होना चाहिए, अकाउंटेड होना चाहिए, प्लीज आप ध्यान दो वो चीज, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके जब पता नहीं आप कब अमीर बन जाओगे। अभी गरीब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है इनकम टैक्स तो मेरे घर पे तुरना क्या आएगा, अभी नहीं आएगा, अगले 20-25 साल में आप कभी अमीर बन जाओगे आपको भी नहीं पता, तभी आता है। सर घर पे 1000 किलो सोना मिला है और बैलेंस शीट में 10 किलो रखा है, तो मैं बता रहा ये अनडिस्क्लोज कहाँ है, तो डिस्क्लोज है ना। अरे लेकिन किलो में फर्क है कि नहीं, 1000 किलो मिला है, उधर बैलेंस शीट में 10 किलो ही खाले, तो 990 किलो जो एक्स्ट्रा मिला है उसकी बात कर। तो वो लाया था, वो लोग ने बोला नहीं नहीं ये अनडिस्क्लोज थोड़ी ना, क्या डिस्क्लोज है, लेकिन फिर उन्होंने नया प्रोविजन लाया, अच्छा डिस्क्लोज बट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो इसमें पूरा 1000 किलो के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 1000 किलो के ऊपर कैसे लगाएगा? जितना अनडिस्क्लोज है उतने पे लगाएगा। यहां तक तो ठीक था, अभी तक क्या क्या टैक्स कर रहा है समझ रहा है क्या आपको? आपके बैलेंस शीट का इन्वेस्टमेंट, मनी, बुलियन, पार्टली डिस्क्लोज, ये सब कुछ, मतलब पहले लाइबिलिटी साइड को टैक्स किया, अब कौन सी साइड को टैक्स कर रहा है? असेट साइड को। आपको लगता है इनकम टैक्स खाली इनकम को टैक्स करता है, नहीं, इनकम टैक्स असेट भी टैक्स कर सकता है और लाइबिलिटी भी टैक्स। असेट तो फिर भी ठीक है, जो मेरा है वो टैक्स कर रहा है, मैंने किसी से लोन लिया है वो भी टैक्स कर रहा है, मैं बता रहा हूं मैं लोन भी भरूं और टैक्स भी भरूं, बोलता है हाँ। आप 1000 करोड़ का लोन रिपे कर देना और उसके ऊपर 78% टैक्स भर देना। क्योंकि ये लोन लोन है ही नहीं, आप बता रहे हो, खाली चुना लगा रहे हो हमको, लोन है, जेन्यून है तो प्रूव करो। आईसीआईसीआई बैंक से मैंने लोन लिया है, आईसीआईसीआई बैंक मेरा ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करके मुझको लोन देगी? नहीं, ये तो रमेश, सुरेश, गणेश, लता, सरिता, ऐसे लोग, बबीता, हाँ ऐसे लोगों से लोन लिया जाता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। सच बता रहा हूँ, एग्जिस्ट भी नहीं करते। इनकम टैक्स बोलता है इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आओ, बोलते नहीं वो गरीब लोग हैं, उनके पास पैन आधार नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, वो घोस्ट एंटिटी दिखा के आपने, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अभी तक इतना हो गया। ब्लैक होगा तो मैंने आपको बताया खर्चा तो मजबूत करोगे आप, बेटी की शादी वगैरह होगी तो धूमधाम से करोगे, शादी में इनकम टैक्स आएगा आपके, आता है, बड़े बड़े लोगों की शादी में इनकम टैक्स जाता है और सारा रिकॉर्ड रखता है कि कितना खर्चा हुआ है। और जब शादी खत्म हो जाती है तो पूछता है कि साहब कम से कम 100 करोड़ खर्चा किया है आपने शादी में। हाँ, लालू जी के शादी में आए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शादी में गए, जो भी बड़ी शादी है, हर शादी में इनकम टैक्स जाता है। खाली आपको पता चलना चाहिए कि बड़ी शादी इनकम टैक्स आएगा। अच्छा, रेड मारते ऐसा नहीं आते, वो भी फेटा वगैरह लगा के मस्त में डेकोरेशन, मतलब प्रॉपर मेकअप करके ही आते हैं, क्योंकि शादी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। शादी हो जाने के बाद ही वो प्रोसीडिंग्स को चालू करते हैं, तो ऐसे कुछ पावर्स है उनको।
आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं नहीं ऐसे बिन बुलाए मेहमान कैसे आएंगे? अरे भाई वो रातों रात तेरे घर के अंदर घुस सकते हैं। कितने 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 तो मूवी एक्ट्रेस वगैरह जो है ना, उनको रात को 2-2 3-3 बजे रेड किया उनके घर पे, और उनके घर पे और 2-2 3-3 लोग मिले हैं। तो जिसके ऊपर रेड करनी थी तो उसकी तो रेड हो ही गई, जो खाली नाइट आउट के लिए गया था उधर उसकी भी लग गई उस दिन। तो ऐसे किसी के घर पे नाइट आउट करने नहीं जाने का, क्या पता कभी इनकम टैक्स आ जाए। और एक बार पकड़े गए वहां पे छोड़ते नहीं फिर वो लोग। एक बार पकड़े गए, रेड चालू हो गया तो आपको अलाउ नहीं है फिर बाहर जाना, अब उधर ही रहना पड़ेगा आपको। और आपसे भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे, शायद उसके बाद आपके घर पे भी चले जाए, क्योंकि आप रात को 2 बजे वहां पे हो, मतलब जरूरी आप कनेक्टेड हो। और जब एक ने झोल किया है तो मोस्टली आप भी उस झोल में शामिल हो। ठीक है, तो ऐसे इनकम टैक्स को मैं खाली इतने से प्रोविजन इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि तुम जब बच्चे होते हो, छोटे छोटे होते हो, तो तुम हमेशा सोचते हो मैं भी बड़ा होके झोल करेगा। सब करते हैं ना, आप खाली ना करो करके मैं ये बता रहा हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए। इतना सब पढ़ाने के बाद भी तुम हरामखोर लोगों को सुधरने वाले नहीं हो, तुम करने वाले तो झोल ही हो। कम से कम पता तो चले आपको कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। और झोल आप थोड़ी ना क्या करोगे, झोल कौन करता है? क्लाइंट। आप तो कृष्ण हो, तो कृष्ण का काम है कि उसको कॉन्सिक्वेंस बताना है कि देखो सर कर लो, आप लोन की एंट्री दिखा दो, लेकिन वो सेक्शन 68 करके एक सेक्शन है, सर सोने का ईटा खरीद के रखो घर पे, लेकिन जब पकड़े जाओगे तो सेक्शन 69A करके एक सेक्शन है। जाओ सर, आप जाओ, खर्चा करो, फॉरेन टूर वगैरह पे खर्चा करो, शादियों पे खर्चा करो, मजे करो, बहुत अच्छे से रहो, पब वगैरह में क्लब मेंबरशिप ले लो, बहुत अच्छे से खर्चा करो। जिस दिन डिपार्टमेंट पकड़ेगा उस दिन आपको 69C लगा देगा। बहुत सारे एसएससी होते हैं साहब, ब्लैक मनी अकाउंट में डिपॉजिट करके अकाउंट से खर्चा करते हैं, आपको पता है ब्लैक, लेकिन अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ब्लैक है फिर अकाउंट में क्यों डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि खर्चा व्हाइट में करना है, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा ना। आप लोग जब टैली, किसी का भी टैली ओपन करते हो, ये लोग कैश सेल्स बुक नहीं करते ना, लेकिन एक्सपेंस सारा बुक करते हैं, खर्चा सारा बुक करते हैं। कैश वाला एक खर्चा भी बुक करते हैं। कौन सा वाला? कैश वाला, ब्लैक वाला। फिर तुम्हारा कैश लेजर क्या हो जाता है? नेगेटिव। कैश लेजर नेगेटिव होता है, तुम उसको क्या पूछते हो फोन करके? क्लाइंट को डांट देते हो तुम उस दिन कि कैश कैसा नेगेटिव हो सकता है तुम्हारा? आपको क्या लग रहा है? हमें नहीं समझ रहा आप क्या कर रहे हो। कैश आया कहां से जब गया तो क्लाइंट भी बोलता है अरे आया था वो यहाँ वहां से थोड़ा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकम टैक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कि नेगेटिव कैसे हो गया? आपको क्या लग रहा है सब आपके जैसे सी है? आपको 69C लग जाएगा। सेक्शन 69C खर्चे पकड़ता है। अब तक आपका इतना तो अंडरस्टैंडिंग था कि इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है। फिर वो बोलता है अरे सर गलती होगी सर, तो आप क्या बोलते हो? चलो वो सारे खर्चे डिलीट करो बुक में से, सारे खर्चे क्या कर दो? हटा दो। देखो कैश को पॉजिटिव करने के लिए 2 ही चीजें कर सकते हो आप, या कैश कहां से आया वो एंट्री मारो, अभी उसके ऊपर जीएसटी वगैरह सब भरना पड़ेगा। बोलता है नहीं नहीं वो नहीं कर सकता, कैश इनकम नहीं दिखाना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या? जो कैश के एक्सपेंस है वो निकाल दो, और इसी में इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी वगैरह लग गई। इनकम टैक्स ने बोला टैली का डेटा भेज दो, तुमने जो पहला टैली का डेटा आया था वो भेज दिया, और नए टैली के डेटा जो सजाया हुआ है वो रह गया। और वो जाने दो, अभी तो नया नया क्या आ गया टैली में, ईआरपी में नया अमेंडमेंट क्या है 3.0 में, ये डिलीट भी करोगे तभी भी उधर रिकॉर्ड रहता है अभी सर्वर पे, डिलीट करोगे तो भी ट्रेल बचा रहेगा। तो इनकम टैक्स पूछेगा आपको अभी बताओ जी क्या डिलीट किया, आप बताओ नहीं तो हम ढूंढ लेंगे। तो इसलिए अभी ऐसे प्रोविजन्स आए साहब, सांगितलं ना पोहा बनवायला। हाँ हाँ, सो अगर आपने खर्चे डिलीट भी किए होंगे बिजनेस के बता रहा हूं, पर्सनल तो छोड़ ही दो, और बाद में अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया कि खर्चे खर्चे कैसे भूल गए आप रिकॉर्ड करने। इनकम टैक्स में ऐसा कभी नहीं होता, इंसान एक बार इनकम बुक करना भूल जाता है, खर्चे बुक करना कभी नहीं भूलता, लेकिन बोलता है सर वो भूल के रह गया था। अच्छा भूल के रह गया था, तो जब खर्चे किए तो पैसे कहां से लाए थे? थे सर, वो रहते हैं।
रहते हैं ना ऐसे, सबके पास रहते हैं, आपके पास भी होंगे। इनकम टैक्स अभी एक्सपेंस साइड को टैक्स कर रहा है आपके। अगर आपने एक्सपेंस कहां से की है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो। आपके कैश बुक में 3 लाख दिख रहा है और आपने बेटी की शादी पे 15 करोड़ खर्चे किए, डिपार्टमेंट पूछेगा ना ऊपर का पैसा कहां से आया। वो आया सर, था ऐसा, किधर था तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं है, था तो अकाउंट से क्यों नहीं गया, कैश में क्यों गया। खर्चा किया मतलब कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी भर का जो ब्लैक कमाया था, आज जो आपने बाहर निकाला है ना, जिंदगी भर आपको पकड़ा नहीं गया, 15-25 साल से आपने वो ब्लैक जमा करके रखा है और बेटी की शादी में वो ब्लैक बाहर निकाला आपने, आज आपको टैक्स लगेगा साहब। इनकम टैक्स एक्सपेंस को भी टैक्स करता है, याद रखो आप। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कि ये खर्चा किया कहां से। इसलिए हम हमेशा हमारे क्लाइंट को क्या बोलते हैं, सब जो भी है बैंकिंग से करो, ओरिजिनल करो डुप्लीकेट करो, लेकिन बैंकिंग से करो सर, बैंकिंग से करना बहुत जरूरी है। आगे जाता हूं 2 कदम। अब क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है जो आपने डिलीट करवाया था, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, 25 लाख का खर्चा है समझो, कैश में जो किया था गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, 25 लाख का क्या बना देगा गवर्नमेंट, इनकम। अब आप क्या बता रहे हो, सर आपको तो पता है ना ये बिजनेस का खर्चा था, आपने अभी इनकम कर दिया, एक काम कर दो ना सर, इसका डिडक्शन दे दो ना। समझ रहे मैं क्या मांग रहा हूं आपसे। ये एक्सपेंस था, किसने पकड़ा, इनकम टैक्स ने, आपने बताया नहीं था उनको, उन्होंने पकड़ा और प्रूव किया कि आपने खर्चा किया और आपने अग्री भी किया कि हाँ साहब खर्चा क्या, गलती हो गई। और सेक्शन 69C बोलता है इनकम बन जाएगा, अभी ये खर्चा इनकम भी बन गया। आप क्या मांग रहे हो बेशर्म के जैसे, अभी खर्चा तो किया ना, आपने ही प्रूव किया ना खर्चा किया है मैंने, तो बिजनेस का खर्चा है ना, इसका क्या दे दो अभी। CS आपने डिलीट करवाया था, आप दे दो ना अभी, डिडक्शन दे दो। देगा डिडक्शन आपको डिपार्टमेंट, नहीं देगा ना, तो प्रोवाइजो यहाँ पे डाल दिया उन्होंने कि भैया जब खर्चा हम पकड़ते हैं, खर्चा जब हम पकड़ते हैं तो उसका आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। Such unexplained expenditure deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of income, किधर भी नहीं मिलेगा आपको डिडक्शन, ठीक है। और ये पता है आपको, मार्केट में जो साहूकारी लोन जाता है, हुंडी वाला लोन, 3% बैच पर मंथ, 5% पर मंथ, मैंने तो देखा 10% पर मंथ। 10% पर मंथ क्या होता है रे, मतलब 1 लाख का लोन लेगा साला, 10 महीने में 2 लाख हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा लोन चलता है मार्केट में अभी भी, वो कैश वाला लोन है, साहूकारी बोलते हैं उसको। अगर पकड़े जाओगे तो लोन अमाउंट ही इनकम है, बताओ। और वो बोरो करने वाला भी पापी और रिपे करने के टाइम पे पकड़ा तभी भी पापी। मतलब लिख तो, लोन लेने के टाइम पे डिपार्टमेंट पकड़ेगा या लोन देने के टाइम पे पकड़ेगा, दोनों टाइम पे पकड़ेगा, तभी भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कितना डेंजरस प्रोविजन है स्पेशल रेट्स के। तो आज हमने इनकम टैक्स के जो स्पेशल रेट्स है वो कवर अप किए। बाकी नॉर्मल रेट मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है। नॉर्मल रेट इंडिविजुअल के क्या है, 2.5 लाख टू 5 लाख, बोलो 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउ 10 लाख 30% है, अबाउ 50 लाख सरचार्ज 10%, अबाउ 1 करोड़ सरचार्ज 15%, अबाउ 2 करोड़ सरचार्ज 25%, अबाउ 5 करोड़ सरचार्ज 37%। और ये जो अबाउ 25, अबाउ 2 करोड़ और अबाउ 5 करोड़ का मैंने बोला 25% और 37, ये जो हार्श सरचार्ज है, ये जो शेयर मार्केट के थ्रू जो गेम इनकम आता है, कौन से 3 इनकम शेयर मार्केट के आते हैं, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म गेन 1111 ए का, लॉन्ग टर्म 112 ए का, और अभी उसमें एक नया ऐड कर दिया उन्होंने, नॉर्मल सादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का। 4 इनकम के ऊपर ये जो हार्श इनकम सरचार्ज है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप सीनियर सिटीजन होगे तो 3 लाख से स्लैब चालू होगा, सुपर सीनियर सिटीजन रहोगे तो 5 लाख से स्लैब चालू होगा। रिबेट क्या मिलता है इनका, सेक्शन 87 में नॉर्मल वालों का रिबेट क्या है, 12,500 अप टू टोटल इनकम, अगर आपका लेस देन 5 लाख होगा, अप टू 5 लाख होगा तो ये मिलता है। इतना सब है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसके जो एडवांस क्वेश्चंस है, मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज का एप्लीकेशन, डायरेक्टली हम एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, स्पेशल रेट समझ में आया आपको आज? ओके, चलो, थैंक यू.